અને એકવાર ખાલી આટલું બોલ્યું હોય તો મમ્મી પપ્પાને આવવું પડશે ને એટલે બાળકને સિરિયસનેસ ખ્યાલ આવે. સર એ લોકો એવું કે તમે મારા પપ્પા જોડે નહીં શીખ્યા મારા ક્લાસમાં. હા એમાં શું થતું એ જે પણ એવું કહે છે કે આ અમારા પપ્પા પાસેથી શીખતા છીએ તો પહેલા તો એને કહ્યું કે ગમે એની પાસેથી શીખવા આ યોગ્ય નથી અને શાળામાં કે ક્લાસરૂમમાં નહીં. બીજું પપ્પાને બોલાવીને કહ્યું કે આવું કે છે અને આ યોગ્ય લાગે છે. જો એ તમને એમ કે યોગ્ય લાગે છે તમારે કામ બરોબર એ એમ કે ને કે આ યોગ્ય નથી તો એને કહી દો કે આ આપણું ધ્યાન રાખીએ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે ઘરમાં તમારાથી કઈ આની સામે બોલવાનું ના તમે બાળકને બોલશો ના ઘરના અન્ય સભ્યોને બોલશો ના બાળકને સાંભળતા છે બીજા કોઈ બોલતા હોય ત્યાં બેઠો ભાઈ ત્યાં તો લોકો શેરીમાં ઝઘડતા હોય તો હવે બાળક સાથે જવાનું આ રીતે વાત બરોબર. આની ઉપર આપણું સ્ટેન્ડ ક્લિયર રાખવું બરોબર. આને છે આપણે એક્સેપ્ટ નથી કરવું. મોટા બાળકોમાં તો છે હવે પપ્પાને બોલાવો. હવે બીજી વસ્તુ એક તમને વિચારવા માટે આપણે જીવન વિદ્યાની વાત કરીએ છીએ ત્રિહેલા વિદ્યા સંવેદનામાં છે જવાબ નથી તો તમે લોકો બધા દર્શનના અભ્યાસથી કરી છે પરિચય શિબિર તો કરી છે તો મેં કીધું કે આ ગુલાબના ફૂલ લઈ આવો અને હું અહીંયા લઈ આવ્યો આ એક્શન તમે લોકો કઈ રીતના જોવો શું સમજો શું મૂલ્યાંકન કરો કયો ચાલો આપણે દર્શનમાં એમ કહીએ વિદ્યામાં એમ કહેતા હોય કે રૂપ પર ગણપત છે બરોબર એમાં સુખ નથી અથવા પ્રિય સંવેદના એમાં સુખ નથી આ વસ્તુ છે એના માટે છે ભાઈ આ શું કામ જોઈએ આટલી બેન છે કેટલો મારીને લડવા માટે તો શું કામ આવે કે આનાથી કઈ સન્માન તો મળવાનું એ સમજના આ તો ખાલી ઉદાહરણ તમારું આ ફાઈન જો આ છે ને કોઈ દર્શન બીજું કોણ છે ભાઈ યસ યુ આર એવું શું કામ બરોબર તો એક બાજુ છે એ જીવન વિદ્યામાં 10 વર્ષ ત્યાં રાજેશભાઈ અને આવી વસ્તુમાં જે ફસાય શું લાગે તમે આ એક્શનને કઈ રીતના જોવો છો આ એક એક્સરસાઇઝ જ છે આપણે કારણ કે બધા અવલોકન તો કરતા જ હોય આપણા ચાલુ કરીએ છીએ મેં કીધું આપણે ક્યારેક પ્રાર્થના કે કોઈ પેલા દિવસે ફોર્માલિટી કરી એના પછી આપણે કોઈ ટૂંકમાં જેનાથી આપણું મન એકાગ્ર થાય તો હોમ જોઈએ તો સાર્થક વસ્તુ છે પ્રાર્થના કરતા નથી આપણે કરશું આજે તો ગીતે વગાડવા તમે આવતા હતા તમે તો આગળ નીકળી ગયા બ્રહ્મચારી માંગી ધીમી રહી કીધું એના પછી કીધું ના ઊભી નથી ચાલો જઈએ કઈ જરૂર નથી ચાલે મેં કીધું કરશું પછી છે એને એમ ફોન કર્યો પાછા કોઈ એને કીધું કે તમે લેવાય તો લેતા આવજો એટલે એ રસ્તામાં જોયું તો આ કીધું તો બોલો કઈ રીતના સમજવા અને જે રીતના સમજતા હોય એ જ રીતના પૂછવા એટલે તમે તો સારા માટે તમે આ ઘટનાને છે કેવી રીતના સમજો છો 2 મિનિટ થી પહેલા સમયને લીધે આપણે બોલો હા બોલો અંશુ પર બેઠા છે બોલો તો એવું કહી શકાય તો ક્લિયરલી લાગણી કોઈ પણ વસ્તુ આપણને આકર્ષિત કરે એ આપણા માટે
જેટલી યોગ્ય છે બરાબર વ્યવસ્થાના અર્થે, તો એનો યુઝ કરી શકે. જો યોગ્ય ના હોય તો એના ઇગ્નોર કરી મેં શું કામ કર્યું સર? તમને શું લાગે છે મારી વાત એટલે જે વાત કરી કે બધા મિત્રોનું ધ્યાન કર્યું એના ધ્યાન તો આમાં બને એ જરૂરી છે. એમ નહીં પણ કોઈ વાર એ બાજુ ધ્યાન જાય છતાં પણ એ મતલબ અહીંયાથી આ ધ્યાન કરે. ના ના તો આપણે શિક્ષકો વ્યવસ્થિત આમ તૈયાર છે એટીકેટીમાં આવવાનું એનાથી પછી ચલે એ બોલે ભણવા એના ઉપર ધ્યાન કરે. આવું થાય છે. ઘણી શાળામાં જે શિક્ષકો માટે રહ્યું છે વ્યવસ્થિત અપડેટ તૈયાર વિકસિત કરી નાખે. બોલો જો આવું છે ઘણી સ્કૂલ. ચાલો આપણે મુદ્દાઓ પર આવી જઈએ પછી ચર્ચા કરવા. બોલો તમને બોલો આ રેકોર્ડ થાય સારું તો એક્ટિવિટીનો ભાગ તો માઇક લઈ તો સર જો ગુડ આ ઉભું થઈને સામે કર્યું તો ઘણી વાર તો વિચાર આવે ના કરો. भैया एग्जैक्टली जब फोन आया ना तो मैं उसी जगह पे पहुंच नहीं पाया. तो जैसे राजेश भैया का फोन तो बोले वो कमर जो है ना उन्होंने बताया कौन सी जगह पे. तो जिस वजह से पहले बात मुझे लगा कि शायद उनको किसी आयुर्वेदिक यूज के लिए ऐसा माइंड जहन में चला कि कोई आयुर्वेदिक यूज के लिए हो सकता है. ठीक है. फिर ये भी बात चली कि मतलब कि वो काफी गहरा है. वो तो नया होगा तो नहीं ला पाता. मेरे पास में मेरे बाजू में तो उनको मैं लेके आया था, वो बैठा था तो उसको अंदर इतना वो अंदर चला गया और वहां से तो एक तो आयुर्वेदिक यूज के लिए मैं समझा. फिर यहाँ पे जब आपने रखा तो ये भी लगा कि आपने बताया ना कि प्रार्थना से पहले तो इसको प्रार्थना भी किया जाता है. फिर उसमें सौंदर्य का वहां भी देखा जा सकता है. तो हम ऐसे देखते हैं तो मंदिरों में भी जो है फूल को प्रार्थना दी जाती है तो उसके भी कुछ गुण हैं तो उनको भी देखा जा सकता है जैसे सुगंध का और दूसरी चीजें जो है तो इसके लिए मतलब किसी सम्मान में भी इसका उपयोग किया जाता है. इसका सम्मान करते हैं तो फूलों की माला वो एक जो है अच्छी चीज माना जाता है. तो इस अर्थ में मैं देख सकता हूँ प्रिय तो था आपने प्रिय के रूप में लिया लेकिन अभी उसका यूज कहाँ करना है वो न्याय ढंग सत्य के अर्थ में होना है. ये बात मैं तो ये कह रहा हूँ ठीक है आपने भाषण किया. आप इस सेक्शन को कैसे देखते हैं? मैंने क्या सोचा आपने कहा नहीं और लोगों को कर दिया. जिस सोच विचार तो सब में चल ही रहा है ऐसा नहीं है. देखिए चलो भाई तो बोलो સર લગભગ ખેતરમાં તમે જોયું કેટલા લગભગ લાઈવ એટલે લગભગ કોઈ મફત આયા એટલે એવું દેખાવ ખુલ્લી કિંમત કોઈ માલિક हाँ बरोबर બીજું શું કહે બરોબર બોલો બીજું કે કેવો વિચાર થાય કે આટલામાં કોઈ જગ્યાએ દેખાતા નહીં કમળ કોઈ જગ્યાએ તમને દેખાય અલગ લાગ્યું તો નહીં કોઈ કમળ અંદર કેવો છે પહેલા તો આ જેવો ગુલાબ ગુલાબ એ ગુલાબ તમને અલગ લાગ્યું આકર્ષિત આકર્ષિત થાય બરોબર બીજા કોઈ જેવું છે आप लोग पहले शर्मा के ऐसा गुरु करेंगे लाया बोले थे
I can improve the mark. બરોબર. સારું, કાદવ કમળમાં કમળ કાદવમાં ઉભો રહે. તમે કમ્પ્યુટર દૂર છો. ઘણી વાર આપણે જોઈએ કે દર વસ્તુ આ એક પણ એક નવી વસ્તુ છે તો અભ્યાસના ભાગરૂપે પણ કદાચ લાગે છે કારણ કે કમળ વસ્તુ એવી છે કે ઘણી વસ્તુ આપણે જોડે લઈ એને ફેલાવીને જોવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ. ધારો કે મારી જોડે એક એક્ઝામ્પલ છે કે મને યાદ છે બહુ ઘટના કે એક વખત મેળામાં પપ્પા સાથે ગયેલો હું તો પેલી જે બંદૂક આવે ને કેપ્ટન તો હું લાવેલો સગર નથી છતાં પણ લીધી હતી મેં. તો પછી લાયા પછી મને એવું થયું કે એવું તો શું છે આવું અંદરથી ગોળી બહાર નીકળે છે પ્લાસ્ટિકની એને બહાર જાય છે તો એના મેં શું કર્યું જોઈ લીધું કે કઈ પ્રોસેસ આવે પછી જુદી કર્યા પછી ખ્યાલ આવ્યો કે આ તો મેં ખોટું બનાવ્યું તો મને એવું લાગે કે અભ્યાસના ભાગરૂપે કદાચ લાગે. ચાલો છેલ્લું પછી મને એવું લાગે કે જ્યારે તમે આ ફૂલ જોયું બરોબર એટલે એક્ઝેક્ટલી કદાચ એવું થયું કે આ ફૂલ કેવું મસ્ત સારું લાગે છે બરોબર એટ ટાઈમ તમારા માઇન્ડમાં એવું વિચાર આવ્યો હોય કે ભાઈ આપણે ત્યાં જઈશું હોલમાં અને એ ચિત્ર તમારા અંદર ક્લિયર થયું કે ત્યાં પ્રાર્થના કરીશું કે આપણે એને મૂકીશું તો એક વાતાવરણ એવું બનશે સારું લાગશે એક સૌંદર્ય એવું વિચાર્યું એવું માનું હા અનુમાન જ કહેવાય. હા આવું જ કર્યું છે હું કેટલી बोलते थे कई बार जब जीवन विद्या का प्रस्ताव समझते हैं तो लगता है कि प्रिय लाभ की जो वस्तुएं है जो इंद्रिय संवेदना को आकर्षित करती है ऐसी चीजें है वो जीवन विद्या वाले लोग हैं वो कोई लेके या उसके आसपास. ठीक है तो ये थोड़ा अधिक मुझे सामने वाले फर्क इतना ही है कि वो चीजें हमें नियंत्रित नहीं करती. मतलब मेरा वो अपने अपने से निकलता है तो मुझे तो ये चीज है वो उस अर्थ में नियंत्रित नहीं करती है कि मुझे चाहिए या फिर मेरे विचार उसके लिए दौड़ते हैं या फिर बड़ा है तो जल्दी मेरे पास कैसे आ जाए मैं सोच रहा हूँ. जैसे लड़कियां अभी सोच सकती है कि टेबल में से मेरे पास कब तो ऐसा इसमें कुछ गलत नहीं है. ठीक है इससे कुछ गलत तो हो रही है तो उसके पास आ जाए लेकिन मेरा इच्छा विचार अच्छा है वो कंटिन्यूअस उसके लिए थोड़ा हुआ नहीं कि मैंने वो रास्ते में देखा था अब तो आएगा तभी ठीक लगेगा. मान लो को बोला और वो किसी कारण से बोल दिया नहीं यार तो मैं अपने अंदर है वो स्थिर सांस हो सकता. तो जब न्याय धर्म से हमारे अंदर वरीयता में आ जाती है मुझे ऐसा अभिमान बनता है कि प्रिय लाभ की सारी चीजें ऐसे ही नियंत्रित रहती है तो उसका हम उपभोग नहीं करते ऐसा नहीं उसका हम उपयोग सदुपयोग तो करते ही है लेकिन वो मेरा ड्राइविंग फोर्स नहीं है या फिर मेरी कल्पनाशीलता में वही चलता रहता है ऐसा नहीं. जब आता है तो उसको भोगते ही है. आदर्शवाद में क्या है भोगना ही नहीं सामने आता है तिरस्कार सुंदरता का तिरस्कार या फिर प्रिय हित लाभ स्वाद का तिरस्कार सब कुछ चीजों का मतलब त्याग त्याग. तो इसको इस दृष्टिकोण से देखा जाए आप सब भी अभी तो कोई भी ऐसी चीज है प्रिय लाभ की है तो आप छूटेंगी आप उससे तंत्रित होना आप बंद हो गए जीवन में से डिलीट हो जाएगी ऐसा नहीं तो उसी अर्थ में मुझे लगता है सही है. बाकी दूसरा है जो प्रार्थना में या फिर एक तरीके का एनवायरमेंट या फिर जो भी दूसरी चीज है वो अलग उस अर्थ में ही और एक अध्ययन के लिए जो आपने क्या चीज ये देख पाए सर. और देखो यहाँ पे आए तो कुछ तो ज्ञान मिला. भैया ने कहा कि मखाना इसमें से बनते हैं इसने कहा कि ये पवन वो तो ठीक है ऐसे टीचर है वो सीखना ही चाहते हैं तो सीखने को मिले. बाकी ये बहुत ही मतलब राजेश भाई से कुछ बात हो रही तभी मेरा ये ध्यान नहीं रहा कि ये चीजें मेरे में इस तरीके से हो रही शायद पिछली बार कुछ मुझे याद नहीं क्या किस्सा था
तो ये चीज अध्ययन विधि से काफी संतुलन में आती है। मुझे भी याद आ गया एक घटना। अभी मेरे बेटे का 25 मार्च को एग्जाम खत्म हुआ और वहीं पास में 29 मार्च से मेरा एक शिविर था। तो 12th के बाद बेटे ने कहा मैं भी बैठता हूँ, तो मैंने कहा तो अच्छी बात है। और मेरे लिए भी वो परीक्षा थी, क्योंकि वो मुझे घर में भी देख रहा है। तो 5 दिन उसने सुना, अच्छे से ही सुना। खैर आखिरी दिन आते आते उसे टेंशन खड़ी हुई। क्या है कि उसको खाने पीने का बहुत शौक है, बच्चों को होता भी है, और उसको थोड़ा विशेष रूप से, मतलब खाने पीने का मतलब नए नए प्रकार के खाने। उसने कहा कि ये बताओ पिताजी कि अगर ये सब समझ जाएंगे तो ये सब खाना पीना छूट जाएगा क्या? ऐसा उसको लगा। तो जब इसको समझने जाएंगे तो मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा तेरे को क्या लगता है कि मैं कोई उबला हुआ ही खाना खाता हूँ क्या? घर पे तो तू मुझे देखता ही है, और मैं काफ़ी चटपटा मैं सिर्फ इतना ही है कि बाजार का खाना कम पसंद करता हूँ, पर ऐसा नहीं कि मैं चटपटा स्वाद का खाना पसंद नहीं करता। घर में पराठे बनते हैं, चाय मतलब ये सब चीज़ थी। तो मैंने उसको यही बोला कि जैसे मैंने कहा तुझे तो पता ही है कि जैसे मान लीजिए समोसा है बाजार में, अगर जैसे मैं उसको कमजोरी के तौर पर भी देखता हूँ, नॉर्मली समोसा कम खाता हूँ, पर कहीं अगर वो उबल रहा हो, कढ़ाई में उबलता है ना, वो उबल रहा हो तो मेरा ध्यान उधर जाता ही है, और जनरली मैं उसको, पर मैंने कहा तुझे क्या लगता है कि मैं 24 घंटे यही सोचता रहता हूँ कि मैं बाजार जाऊंगा और फिर मैं ढूंढ रहा हूँ काम धाम छोड़ के, मतलब बाजार गया था किसी और काम के लिए, और तूने मुझे कभी ऐसा देखा? बोला नहीं। पर मैंने कहा तूने ये देखा कि हम जा रहे हैं और अगर कहीं वो मिले तो मैं चलो खा लेते। तो मैंने कहा मजा लेते कि नहीं लेते? तो उसका ये ध्यान था कि उसको ये लगा, क्योंकि 4-5 दिन सुना उसने, थोड़ा गहरे में सुना, उसको लगा यार ये तो मामला गड़बड़ है। ठीक है। और फिर जहाँ हम गए वहाँ भी खाना बढ़िया बन ही रहा था अच्छे से। तो वो अच्छा ध्यान दिलाया आपने कि मतलब वो ऐसा नहीं है कि हम ये हिमालय पे जाने का कार्यक्रम नहीं है, ठाठ से रहने का कार्यक्रम। चलिए आगे शुरू करते हैं। हेलो, हम्म, नमस्ते सबको। तो नौवीं 10वीं में हमारे पास काफी सारे मुद्दे थे। 9वीं में शायद 8 मुद्दे हैं और 10वीं में 6 मुद्दे हैं। उन पे हमें दृष्टि करना था। तो हमने कुछ कुछ मुद्दे जिनमें हम सोच पाए वो हमने बनाए हैं, और पॉइंट भी रखे हैं, ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। ठीक उस ठीक पे ठीक हम सोचने वाले हैं आगे मतलब कैसे बनेगा। ठीक ठीक। तो जैसे कि शरीर और जीवन के बीच में क्या अंतर है, और वो मानव का जो संयुक्त स्वरूप है शरीर और जीवन, तो बच्चे कैसे उसको अलग अलग समझ पाए। तो उसके लिए हमने दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है वो मुद्दे लिखे हुए हैं। उसको फिर हमने उदाहरण के द्वारा या दृष्टांत देके हम उनको समझा सकते हैं। तो वो सारे मतलब हमने पुस्तक बनाया हुआ है कि वो पढ़ नहीं रही हूँ मैं अभी क्योंकि टाइम लगता है। ठीक ठीक। तो आप देखिए ऐसे ही बनाएंगे। उसमें फिर गहरी चर्चा मतलब हो सकती है, और आगे वो भी है कि आवश्यकताओं के आधार पर ही हम। हाँ, इसको थोड़ा ठीक देखना पड़ेगा आपको। अच्छा, हाँ हाँ, वहाँ आकार नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, क्योंकि अगर वो इकाई है तो आकार है। ये बोल सकते हैं कि शरीर का आकार डायरेक्टली दिख रहा है, ये पकड़ में, आंखों से पकड़ में नहीं आता। हाँ, जो भी है ना? अगर वो पुंजाकार पकड़ पाए तो ठीक है, नहीं तो कम से कम आंखों से डायरेक्ट पकड़ में नहीं आ रहा। निराकार नहीं बोल सकते उसको, या आकार नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, बाकी तो ठीक है। तो ये फिर उसको आवश्यकताओं के आधार पे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो उसमें आवश्यकताओं की भी समझ बच्चे में मतलब जा ही सकती है, इसलिए कि मेरी जरूरत क्या है और मेरे शरीर की आवश्यकता क्या है। तो उसमें वो नियंत्रण, जो इंद्रियों पे नियंत्रण वाली बात है जो भी हम कर रहे थे, तो उसको पता चलता है कि मुझे ज्ञान चाहिए और कल्पनाएं पूरी में अभी इंद्रियों में लड़ा रहा हूँ, तो उसमें वो नियंत्रित हो सकता है। फिर उसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे कि मृत्यु है और नींद है। तो हम कहते हैं कि मतलब जब इंसान सो जाता है
तो उसके साथ जीवन रहता ही है, शरीर सोता है। तो जीवन तो होता ही है, लेकिन जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो शरीर ही रहता है और जीवन नहीं होता है। तो क्या है कि बच्चे ने मृत्यु वाली घटना देखी हुई है और मृत्यु को भी वो जानता ही है, तो उसको भी एग्जाम्पल से हम बता सकते हैं कि ऐसी दो वास्तविकताएं, मतलब शरीर और जीवन, ऐसी दो वास्तविकताएं होती है। तो उसको कैसे भी बता सकते हैं। उसके बाद अच्छा, जीवन और ब्रेन के बीच में जो संबंध है तो उसको बताना है बच्चे को कि जैसे कि बड़ी शक्ति है वो छोटी शक्ति के स्वरूप में मतलब प्रस्तुत होती है। तो मैंने ये सोचा था कि मेरे 10वीं की कक्षा में नर्वस सिस्टम आता है पढ़ाने, तो कैसे संवेदनाएं हम 5 इंद्रियों से लेते हैं और माइंड तक वो कैसे जाता है, तो उसमें इसको जोड़ सकते हैं और इस पे चर्चा हो सकती है उसमें। तो मुद्दे वो मैंने लिखे हैं कि कैसे जाते हैं और उसको अगर बच्चा मतलब नहीं समझ, बच्चे को एक एग्जाम्पल ये भी दे सकते हैं कि जैसे कोमा में कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसमें दिमाग जो है वो शरीर और जीवन के बीच की कड़ी है। तो क्या है कि ब्रेन काम नहीं कर रहा है ना, इसलिए वो जीवन तो होता है उसमें, व्यक्ति तो मतलब जिंदा ही है लेकिन लाश की तरह है, क्योंकि उसको कुछ एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। तो वो क्यों नहीं कर पा रहा है, तो उसको भी एक एग्जाम्पल से समझा सकते हैं कि कैसे ब्रेन जो है वो शरीर और जीवन के बीच में कड़ी के जैसे काम करता है, मतलब जोड़े रखता है। तो वो है। फिर आगे परिवार, मतलब मुद्दा काफी बड़ा है उसमें कि परिवार की समझ, फिर परिवार में व्यवहार प्रमाण और परिवार की सीमा में उत्पादन कार्य में भागीदारी प्रमाण, तो ऐसा मुद्दा है। तो उसमें पहले तो परिवार का अर्थ क्या है, तो उसको परिवार की समझ देनी है, और फिर परिवार में हम व्यवहार कैसे करते हैं और किसको व्यवहार पहले तो बोल रहे हैं, तो उसको भी हम मतलब अभी क्या है कि हमारे समाज में व्यवहार को हम कैसे देखते हैं कि अगर किसी की शादी में जाते हैं, किसी ने हमको शादी में बुलाया है तो हम वहाँ पे जाके कुछ पैसे लिख पाते हैं, तो उसको हम व्यवहार अभी तो ऐसा ही समझ रहे हैं। कोई हमारे घर पे आता है तो उसके साथ कोई बच्चा है तो उसको हम पैसे देते हैं, तो बोलते हैं कि ये व्यवहार किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं करना है, लेकिन वो व्यवहार ऐसा नहीं है कि सिर्फ वस्तु के साथ ही व्यवहार होता है, व्यवहार विचारों के साथ भी होता है। तो उसको अलग अलग दृष्टांत से हम उसको समझा सकते हैं। तो मैंने सोचे हुए हैं लेकिन इसमें नहीं लिखे हैं अभी, और ताकि के आगे सोच सकते हैं उसमें। फिर देवता वेता होता था, उसमें तो काफी सारी चर्चा हो गई है, तो उसमें भी हम काफी सारे मतलब दृष्टांत दे सकते हैं और बच्चे को उसकी रियल मतलब जो रोज की जिंदगी में उसके साथ जो भी घटनाएं होती है तो उस घटनाओं में भी हम उसको जोड़ ही सकते हैं देवता वेता और उदाहरण को। तो ऐसे देखा हुआ अभी नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि टाइम बढ़ जाएगा, फिर आगे का कंटेंट रह जाएगा इसलिए। हाँ, ये मुद्दा मेरे लिए नया था जो लास्ट वाला है, व्यवहार प्रमाण, प्रयोग प्रमाण, अनुभव प्रमाण। तो वो उसमें है कि जब हम कुछ समझ गए हैं तो उसका प्रमाण हमें कहाँ दिखता है, तो उसका प्रमाण हमें 3 जगह पे दिखता है, एक व्यवहार में दिखता है, एक प्रयोग के स्वरूप में दिखता है और एक अनुभव के स्वरूप में दिखता है। तो अभी मेरी पैरेंट्स में से बात हुई तो काफी सारी चर्चा में मुझे दृष्टांत भी मिल गए उसमें कि प्रयोग को मैं विज्ञान से काफी ज्यादा जोड़ सकती हूँ, लेकिन अभी क्या है कि प्रयोग को हम मतलब बुक में जो दिए गए हैं उसको ही प्रयोग बोल रहे हैं। मतलब प्रयोग अगर बच्चा कुछ समझता है, प्रकृति का कोई नियम है, कोई सिद्धांत है, वो उसको समझ में आया है तो उसको वो खुद समझता है तो वो अनुभव प्रमाण। लेकिन अगर वो समझा है तो उसमें वो व्यवहार में भी दिखेगा और प्रयोग के स्वरूप में भी दिखेगा। जैसे कि अभी विज्ञान ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी के आधार पे बहुत सारी चीजें बनाई है, लेकिन क्या है कि कुछ ना कुछ उससे हानि हो रही है। तो क्या है कि अगर हम सही में वो सिद्धांत समझे हैं तो कुछ ऐसा मॉडल, कुछ ऐसा बना सकते हैं
कि जो 3 नियम है वो बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम, वो तीनों में संतुलन बना रहे और सभी को उसकी मतलब आवश्यकता है तो उसको सही से वो सदुपयोग कर पाए, ऐसा कुछ अगर बना सकता है तो वो प्रमाण है। उसमें पूरा डिटेलिंग मतलब बच्चे को बता सकता है। और व्यवहार प्रमाण में भी वो दिखता है। अगर मुझे समझ में, जैसे हम मूल्यों की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ 9वीं 10वीं में सारे मूल्य हैं। 30 मूल्य जो है हमारे 330 मूल्य मतलब इसमें हमें समझा रहे हैं। तो वो मूल्य जो है, तो अगर वो बच्चा कोई भी मूल्य अगर सही से पकड़ पाया है तो उसको वो व्यवहार में भी उसको हम देख सकते हैं कि विश्वास है, जैसे प्रेम है, स्नेह है, तो वो समझा है तो उसके व्यवहार में वो दिखता है। तो वो प्रमाण उसी आधार पे है। तो ऐसे हम 3 जगह पे बच्चे मतलब बच्चा अगर, कई बार बच्चे को क्या लगता है कि मैं समझा हूँ कुछ भी। अभी तो क्या है कि जैसे विज्ञान समझ रहे हैं मतलब पढ़ रहे हैं, तो बच्चा कैसी मानसिकता के साथ है कि मुझे बस एग्जाम में ही लिख देना है और मार्क्स आ जाए बस मेरा काम पूरा, उसके बाद मुझे याद नहीं रखना है। अभी तो ऐसा ही चल रहा है। तो टेस्ट के मार्क्स के आधार पे वो उसको रट रहा है, समझ नहीं रहा, तो उसके जीवन में उसकी उपयोगिता है और उसको आगे भी ये काम आने वाला है। उस तरह से वो समझ के जब कुछ भी करता है तो वो अपनी मतलब जीवन में कुछ अच्छी तरह से जी पाता है। तो इसको हम ऐसे मतलब समझा सकते हैं 3 आयाम में। फिर एक एक्टिविटी है नीचे वो बनाई है, जैसे कि जीवन मूल्य है सुख शांति संतोष आनंद। तो कभी क्या है कि डायरेक्ट हम बात नहीं कर सकते, वैसे तो अभी हमारा एक्शन प्लान निकला है कि हम मूल्यों पे लेसन प्लान बनाने वाले हैं, तो वो 10वीं में काम, 9वीं 10वीं में भी काम आने ही वाला है। लेकिन अगर कुछ वर्कशीट है जैसे कि अभी ये बनाई हुई है कि कुछ प्रश्न लिखे हैं और उस प्रश्नों को हम मतलब बच्चे को देंगे, बच्चा इसमें कुछ लिखता है, कुछ भी उसके आंसर के स्वरूप में, फिर उस पर चर्चा शुरू होती है। और चर्चा जो है वो सुख शांति संतोष आनंद की जो मूल्यों की बात है तो उस पर जाकर वो मतलब निष्कर्ष के तौर पे गुण करके आ सकता है। तो एक एक्टिविटी ये भी सोच ली है। तो ऐसे भी हम मतलब 9वीं 10वीं में करने का सोच रहे हैं। फिर कुछ वर्कशॉप या वगैरह कुछ भी हम आगे मतलब जैसे जैसे इस मुद्दे पे लिस्टिंग होगा तो वैसे उसमें करने वाले हैं। धन्यवाद। ठीक, बताइए। ठीक हो गया? और कुछ आपको? एक बार डॉक्यूमेंट अच्छा, तो जो देवता वेवता वगैरह तो आपके मानव मूल्य पर रखा है, सुख शांति संतोष आनंद भी सब रखा है सर। नहीं मतलब सारे नहीं रखे हैं, अभी 6 ही इसमें तो 6 ही रखे हैं। हाँ है सभी। हाँ पर है सभी, हमें पूरा मतलब कहाँ पर है वो? कहाँ से खोला था? किस में डाला था? टेलीग्राम पे भेजा है भैया, मेहुल भाई ने भेजा है। अच्छा, ये वाला? हाँ। 10वां ये 9-10 का ही है, ये एक साथ, हाँ एक साथ ही है। कहाँ पर रोकना है इसको? थोड़ा 10वीं का अभी बाकी है, एक ही मुद्दा उसमें आया है। कहाँ पर रोकूं? और जीता हो जाता ये था। लेकिन भाषा में
हाँ, आमा इसमें जो आपने जीवन और ब्रेन के बीच संबंध और पूरा देखा है वो सब सही है। उसमें जो ये आपने बीच में बोला ना कि कम शक्ति मतलब अधिक शक्ति के द्वारा अधिक शक्ति कम शक्ति के द्वारा अभिव्यक्त होती है। उस सिद्धांत पे चर्चा और उसी के आधार पर कार्य और व्यवहार संपादित होता है, उसके ऊपर स्पष्टता। तो इसके ऊपर अभी मैं एक आध दो खाली बात आपको बोल देता हूँ अपने इसमें, तो उसको फिर आप इसको याद रख सकते हैं। तो आपको जीवन को स्थापित करना है ज्यादा शक्तिशाली वस्तु के तौर पर शरीर के मुकाबले, और जीवन और शरीर के बीच आप भेद तो समझा ही रहे हैं। तो आप ये एग्जाम्पल अगर दे सकते हैं कि कई बार हम इंद्रिय मूलक निर्णय लेते हैं, इंद्रिय संवेदना के वश होकर निर्णय लेते हैं। तो ये हमने क्या किया कि शरीर जो कम शक्ति के साथ उसके वश हमने मतलब ज्यादा शक्ति को निर्णय लेने के लिए बाधित किया। ये ऐसा ही है कि एम्प्लॉय बॉस को है वो बाधित करता है कि ऐसे ही काम नहीं होता है। तो ये है वो दुख का कारण। तो बच्चों को आप सोचने ये कह सकते हो। तो ये तो एक सिर्फ मैं शॉर्ट में ही रख रहा हूँ, पर इसके ऊपर आपको थोड़ा सोच विचार करके मूल में मानव में मुख्यतः जीवन है वो प्राथमिक वस्तु है व्यवहार कर, उसको आप इसमें स्थापित कर सकते हैं। और ये जो लिखा है जीवन मूल्य मानव मूल्य में जो एरो करके है, तो इसका भाषा है ना वो इस तरीके से है। इसको आप इसका एग्जाम्पल लेके मैंने जब समझाया था, तो जीवन मूल्य है वो मानव मूल्य में समर्पित है, सॉरी उल्टा, व्यवसाय मूल्य है वो व्यवहार मूल्य में समर्पित, व्यवहार मूल्य है वो मानव मूल्य में समर्पित, मानव मूल्य जीवन मूल्य में समर्पित। तो इसको हम समर्पित मतलब इस तरीके से सोच सकते हैं कि कोई भी छोटी व्यवस्था है वो उससे बड़ी व्यवस्था में समर्पित हो, लघु है वो प्रति समर्पित हो। तो जब भी मन है वो वृत्ति में समर्पित होगा तभी मन का आचरण है वो निश्चित होगा। जब वृत्ति है वो चित्त में समर्पित होगी तो क्रमशः उसका आचरण इस तरीके से। तो इसीलिए व्यवसाय मूल्य यानी उपयोगिता और कला उसका निर्धारण या निश्चय कैसे होगा जब व्यवहार मूल्य में वो समर्पित होगा तभी। तो मुझे किसी के बर्थडे के लिए कुछ चीज गिफ्ट के लिए मार्केट में क्या तो मैं कैसी चीज दूंगा, कितने की दूंगा, ये कब तय होगा और उसका सार्थकता कब होगा जब मैं सामने वाले के प्रति मेरा व्यवहार है, व्यवहार यानी संबंध यानी जो मूल्य स्थापित और शिष्ट है उसके आधार पर वो होगा तभी वो सही होगा, ठीक हो। इसको समझ, इसके बिना हम उपयोगिता और कला मूल्य को मतलब उसका बाउंड्री क्या है वो तय नहीं कर पाएंगे। कैसा गिफ्ट, कौन सा गिफ्ट, कितना बड़ा गिफ्ट, ये सब चीजों को हम तय ही नहीं कर पाएंगे। वैसे ही व्यवहार है वो किसमें समर्पित होता है, कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है। तो वो देवता वीरता उधर मानव। तो ऐसे होल मानव जाति के कोई भी मानव के साथ वर्तने का जो कार्यक्रम है वो क्या है, मुझे देवता वीरता उजागर या कृपा करने के साथ ही रहना। तो नौ स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य को इस तरीके से मुझे व्यवहार में लाना है। उसकी सीमा रेखा क्या हो तो वो निर्धारित मानव मूल्य कि वो उससे बड़े। तो मानव मूल्य है वो सामाजिक तौर पे हम देखते हैं, इसलिए उसको कहा मानव। कोई भी मानव के साथ वीरता पूर्वक जीना मिनिमम, ठीक है, तभी व्यवहार का जो है वो आकलन सटीक होगा, तभी व्यवसाय का आकलन है या उपयोगिता या कला मूल्य का आकलन हो सटीक होगा।
उसी तरीके मानव मूल्य है वो जीवन मूल्य में समर्पित है। यानी मूल में मैं सुख शांति संतोष आनंद के साथ हूँ, तभी मैं ये भीगता भीगता बदलता जी सकता हूँ। एक एग्जांपल इसका इस तरीके से आप बच्चों को देना है या दे सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो अभी ये मोबाइल है, तो मोबाइल की उपयोगिता क्या है? दूर श्रवण, मतलब दूर के व्यक्ति के साथ बातचीत करने के लिए, और स्मार्टफोन है तो मतलब संदेश सुनने के लिए, देखने के लिए, सब। तो दूर श्रवण और दूरदर्शन की इसकी उपयोग। अब मैं ऐसा मोबाइल लूं जिसमें हीरे जड़े, तो ये उसकी कला मूल्य यानी सुंदरता, तो कला मूल्य यानी सुंदरता को दिखाता है, ये तो बढ़ गई, पर उसकी उपयोगिता में कुछ वृद्धि हुई। अब मैं इसमें हीरे भी जड़ सकता हूँ, इसको सोना का भी बना सकता हूँ। ये कितना करना है, ये कैसे तय होगा? इसको इसका सुंदरता मूल्य ये कितना स्लिम है, उसके ऊपर भी आधार रखता है। इसको कितना स्लिम करना है, कैसे तय होगा? तो ये जब तक ये व्यवसाय मूल्य का नियंत्रण है, जब तक व्यवहार मूल्य में व्यवहार नहीं देखेगा तब तक नहीं। तो उसका जो बाउंड्री है, उपयोगिता लगा कितनी, वो व्यवहार मूल्य में स्पष्ट। तो मूल में मुझे ये क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे किसी के साथ व्यवहार करना है। नवस्थापित मूल्य, नवशिष्ट मूल्य, संबंध को, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, उसके साथ व्यवहार करने के लिए तो मेरे पास अभी नहीं है, दूर है। उससे बातचीत करने के लिए ये साधन है। अब उसके लिए सोने का मोबाइल की जरूरत है, हीरा जड़ित मोबाइल की जरूरत है, ये कंट्रोल में आ गया। ठीक है, तो ये कैसे समझ में आ रहा है? वरना क्या होगा? अभी आटा आपने ये बच्चों के साथ आप बात कर सकते हैं। न्यूज में आता है कि कोई बड़ा बॉलीवुड एक्टर है, वो 1000 रुपए का लीटर पानी पीता है। ये क्या हुआ? जो उपयोगिता और कला बहुत बड़ा है, ये कब जाके नियंत्रित होगा? वो बात है, वो व्यवहार में जाके नियंत्रित। ठीक है, वैसे ही मान लो ये चेयर, तो चेयर की उपयोगिता बैठने, कंफर्टेबल बैठने। अब मैं इसका मटेरियल ऐसा सॉफ्ट कर दूं, या फिर इसको ऐसा इतना इजी कर दूं कि वैसे बैठने से मेरे शरीर में और आलस आ जाएगा, या फिर प्रॉब्लम हो सकती है लॉन्ग टाइम। तो ये उपयोगिता कला मूल्य का दुरुपयोग होगा। वो कैसे तय होगा? वो व्यवहार में जाकर तय होगा। ये जिसके लिए मैं ये खरीद रहा, मेरे लिए, मेरे संबंधी के लिए, उसके शरीर के पोषण के अर्थ में है। तो बीच में ये आया था, किसको मालूम हो कि जो मैट्रेस गद्दे हैं तंत्रों, उसका एक डेंसिटी रहता है, उसके कारण वो इतना सॉफ्ट स्पंजी रहता है कि आप उसमें बैठे तो पूरा अंदर घुस जाता है। तो वो अल्टीमेटली शरीर के लिए नुकसानकारक है। तो ऐसी चेयर, ऐसे गद्दे, ऐसी कोई भी चीज है जिसका उपयोगिता कला मूल्य में इतना, तो स्पंजी मतलब कितना स्पंजी था, ये कब तय होगा? तो ये व्यवहार मूल्य में जाकर तय होगा कि मेरे सामने वाले व्यक्ति के साथ जब मैं संबंध को देख पाऊंगा, और संबंधी का शरीर का ध्यान रखना, वो किसमें आता है? संबंधी के शरीर का पोषण कौन सा मूल्य? ममता मूल्य। तो ममता मूल्य में जाकर तय। वैसे ही खाना भी हम देखें तो खमण आता है, ढोकला इतना स्पॉन्जी आता है, वो कैसे होता है स्पॉन्जी, हम सबको मालूम है। तो शरीर के पोषण के अर्थ में नहीं, पर उसको और स्पॉन्जी करेंगे, इतना स्पॉन्जी करेंगे कि वो हाथ में ही आप नहीं कर पाओगे, बिखर जाएगा। ये उपयोगिता कला मूल्य का सदुपयोग नहीं। तो कब वो व्यवहार में जाकर स्थिर होगा, और व्यवहार है वो मानव मूल्य में जाकर स्थिर होगा। मानव मूल्य अल्टीमेटली व्यवस्था के जीवन मूल्य में जाकर स्थिर होगा। यही अभी कठिनाई है। बच्चों को हम ये ध्यान आकर्षित करवा सकते हैं। ठीक है, टीवी स्लिम चाहिए, पहले ऐसा
मुस्लिम करते 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 मतलब अभी एक पूरा पेपर टीवी आता है, उसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं। और इतना उपयोगिता कला मूल्य के लिए भैया कितना शोध रिसोर्स का समय रिसोर्स, तो हमें वहां से ध्यान आकर्षण करवाना है। वो प्रयोग प्रमाण से आप जोड़ सकते हैं। देखिए प्रयोग भी मानवीयता के प्रमाण, ठीक है। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल इस तरीके से आपको लिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मूल में यहाँ पे आपको मूल्य की शिक्षा देना नहीं, वो तो आगे सीखते हैं, लेकिन आपके बच्चे नहीं सीखे होंगे तो आपको वो भी देना है। पर साथ में ये मुद्दा है उसको कन्वर्ट मतलब मूल्य को व्यवहार में कैसे देख रहे हैं, मतलब रियल लाइफ उसको जो एग्जांपल के साथ से अभी आपने बताया मोबाइल वाला एग्जांपल को। हाँ तो बच्चा जब आगे जाता है तो उसको भी ये माइंड में होता है मुझे करना है। इतना समझ में आ जाएगा तो बच्चा है वो अपना मोबाइल किसी के दबाव प्रभाववश या सोसाइटी के प्रभाववश नहीं, अपनी उपयोगिता को सुनिश्चित करके वो ले पाएगा। जैसे ही और चीजें भी कंज्यूम, इसका बीज और बीजारोपण हमने सदुपयोग से शुरू कर दिया। जब सदुपयोग हम सिखाते हैं छोटे से, इसी को ये बड़े तरीके से, और बाकी के काफी सारे मुद्दे तो आपको बाकी है, जब हो जाए तब इसको हम कक्षा में और 10वीं के भी उसके बाद बढ़िया इसके ऊपर भी। हाँ बस मैं वो जो व्यवहार मूल्य की बात हो रही थी कि वस्तु मूल्य को, इसका एक दो मजेदार बढ़िया एग्जांपल देता हूँ आप। हमको थोड़ा इसमें शोध भी करना पड़ सकता है। दो उदाहरण मुझे ऐसे, जैसे सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था, कुछ अगर कोई आप नाम, मुझे भी ध्यान नहीं है, पर बेसिकली कुछ ऐसे आविष्कार हैं जो ज्यादा प्रयोजनशील हैं या ज्यादा उपयोगी हैं। बेसिकली उसके पीछे स्नेह का या स्नेह के भाव की वजह से हुआ है। जैसे सिलाई मशीन जिस आदमी ने आविष्कार किया था, बेसिकली उसकी पत्नी दर्जी थी, तो वो दर्जी था बेसिकली, और उसकी पत्नी, उसको तो वो करनी पड़ती थी हाथ से, जिसको बारीक सिलाई, और उसकी पत्नी के आंखों उंगली में जो है ना वो सुई बार बार, हाथ उसे काफी घायल होते थे। तो फाइनली उसने अपनी पत्नी की जो दुख था या जो भी, उसको वो देखा नहीं गया और फाइनली उसने मशीन का आविष्कार किया। ऐसे ही मिक्सी का आविष्कार एक भारतीय व्यक्ति ने किया, और उनकी पत्नी जो है, उनको चटनी खाने का बहुत शौक था, तो उनकी पत्नी सिलबट्टे में चटनी पीसती थी, उससे जो उनको, उसमें तो है ही शरीर का मेहनत, तो मिक्सी का भी उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति जो उनका स्नेह था। ऐसे भी बहुत सारे आविष्कार हैं, मतलब वो किसी एक व्यक्ति, मैंने बहुत पहले, मेरे को अभी ध्यान आया ये बात, मैंने पता नहीं कब इसको पढ़ा था कहीं, उसने लिस्ट दे रखी थी ऐसे 15-20 आविष्कारों। हाँ मतलब मेरे को आज से 8-10 साल पहले मैंने कहीं पढ़ा था, तो मेरे को वो याद रहती, तो वो ऐसे मौके पे याद आ जाती है। उस समय मैंने कलेक्शन, शायद लैपटॉप नहीं था तो कलेक्शन नहीं किया, पर कभी कभी अगर हम नजर डालेंगे ना कहीं ना कहीं मिल जाएगा हमको। तो ऐसे उसने 10-15 लिस्ट दे रखी थी जहां आदमी ने किसी स्नेह को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऐसे आविष्कार हुए, और जहां संबंध को ध्यान में रखते हुए नहीं, उसने 2 कैटेगरी की थी। जहां संबंध को ध्यान में रखते हुए आविष्कार नहीं हुए, उन्होंने दुनिया का नाश ही किया, है ना। जैसे परमाणु बम हो गया, या जैसे अब जिसने AK-47 बनाया, उसने क्या सोच के बनाया, तो फाइनली वो आविष्कार। तो कुछ ऐसे उपयोगी आविष्कार भी हुए हैं, पर उसके पीछे कोई स्टोरी थी कि कैसे वो, कोई किसी ने अपने बच्चे के लिए कुछ किया तो वो लोगों के लिए फिर वो हो गया, किसी के बच्चे के वो नहीं थे, है ना। जैसे वो मर्सिडीज की कहानी, हाँ मर्सिडीज की भी, मर्सिडीज जो है वो दुनिया की सबसे सुरक्षित कार मानी जाती है। मर्सिडीज केवल इसलिए फेमस नहीं कि वो महंगी है, बेसिकली उसका जो कंफर्ट है और उसकी जो सिक्योरिटी वो बहुत हाई लेवल की। तो मर्सिडीज बेसिकली एक लड़की का नाम है। तो किसी बड़े उद्योगपति की लड़की का कार में एक्सीडेंट हो गया, बहुत पुरानी बात है, जिस समय कारें नई नई बनी थी, तो उसको लगा यार कि ये जो है ये ठीक नहीं, कार तो ऐसी होनी चाहिए कि किसी और का नुकसान ना हो। तो बेसिकली उसने मर्सिडीज बनाई। वो बात अलग है कि वो आज प्रेस्टीज इश्यू बन गई है, और अब तो लगभग सारी कारें बहुत, वो इसीलिए यही कहना कर सकते कि वो इसीलिए वहां पे जाता है क्योंकि कला मूल्य और उपयोगिता का नियंत्रण है वो व्यवहार का है, वो मानव मूल्य का। नहीं तो क्या है,
नहीं तो हमने पंखा बनाया, अब हमको इसको बटन दबाया हाँ और अब हमको बिना बटन दबाए पंखा चलाना है, हाँ तो हमको रिमोट चाहिए और अब हमें रिमोट भी नहीं बताना है, अब हमको एलेक्सा बोलना है। हाँ ठीक है, और अब हमको एलेक्सा भी नहीं बोलना है, अब वो नया आ गया है कि वो बस आप पंखे की तरफ देखोगे और वो अब चिप कुछ ढूंढ रहे हैं कि ऐसी चिप लगाई जाए कि आपके अंदर कुछ ऐसा हो कि पंखा चल जाए। तो अब ये कला मूल्य नहीं है, ये विशुद्ध रूप से मूर्खता है। तो ये सब ऐसे उदाहरण, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, मतलब जहाँ बहुत स्नेह के साथ उसका ध्यान गया और उसने बहुत ऐसे काम हुए, कई जगह है, मतलब हिंदुस्तान में भी है और ऐसे कई उदाहरण। जैसे वो क्या बोलते हैं, वो दशरथ मांझी की कहानी है, मतलब उसने एक प्रकार से आविष्कार ही किया, वो उसने पहाड़ काट के सड़क बना दी, तो उसके पत्नी को जिस तरह से उसने घायल होते हुए देखा और तमाम चीजें की हैं, तो मेरे आगे किसी को ना हो, किसी ने अपने बच्चे के लिए कुछ किया, किसी ने पत्नी के लिए कुछ किया, किसी ने बहन के लिए कुछ किया, ऐसी बहुत सारी हुई। ये ठीक हो गया? ये समझने से मैं उसी पे एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अगर हम ये समझ लें तो काफी चीजें, मतलब आर्थिक रूप से अगर काफी बेहतर है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं कि वॉशिंग मशीन है, वो घर में कपड़े धोने, तो जब हमने पहली बार घर में वॉशिंग मशीन लिया था तो ऑटोमेटेड नहीं था, मैनुअल जो आता है और ऊपर से जो लोड करते हैं टॉप लोड, तो उसके बाद तो काफी सारी टेक्नोलॉजी आ गई, फ्रंट लोडर टेक्नोलॉजी है, वाईफाई से होता है, स्मार्ट बोर्ड, लेकिन हमारे घर में हम भैया संयुक्त रूप से ये सबकी स्वीकृति है, इसका काम है वो कपड़ा धोना है, इससे ज्यादा अच्छा होता है, तो पूरा ना होता है। अब वॉशिंग मशीन का अगर वेराइटी अभी आप देखते हैं, वो अगर आपको ये उपयोगिता कला मूल्य है वो पकड़ में नहीं है, तो वही वॉशिंग मशीन जो 10, 12, 15 हजार में मिल जाता है, उसके बजाय वो 35,000, 40,000 का हो जाता है। और लोग मतलब अपनी तनख्वाह 15-20 हजार भी नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आने से वो भी नहीं। हाँ, वो तो है, बहुत सारे काम है। बहुत सारे आजकल क्या हो गया है, जैसे अब जनरली एसी हो गए हैं, है ना, और कूलर भी हो गए हैं जिनकी, लेकिन पंखों की कंपनी तो है ही। अब पंखों पे आप देखेंगे तो अब पंखों पे डिजाइन आना और तमाम तरह का वो चीजें आना, वो सब शुरू हो गया है, क्योंकि नहीं तो बिकेंगे कैसे। जनरली कई जगह पंखे की जरूरत है नहीं, मतलब कायदे से, तो पंखा केवल शो के लिए तो कोई ना कोई खरीद ही लेता उसको, और खरीदते ही। तो हम बहुत सारा सामान सिर्फ बिना व्यवहार के खरीद रहे हैं, मतलब वो व्यवहार मूल्य में ये बहुत शानदार वो है, मतलब चर्चा है कि अगर हमको व्यवहार को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं का कला मूल्य, उपयोगिता मूल्य देख पाएंगे तो हमारा धन का सदुपयोग हो पाएगा, वरना वो तो है ना। मतलब एक मजेदार कहानी सुना देता हूँ, छोटी सी, हमारे घर की है। वो जो सेल्समैन होते हैं ना, जो नए नया सामान बेचते हैं, तो हमारे घर में काफी, मतलब हमारी भाभी और कुछ और पड़ोसी, कुछ महिलाएं दिन में बैठ के जस्ट टाइम पास ऐसा होता है सर उसमें धूप में, तो एक सेल्समैन आया कि बहन जी एक तवा लाया, तो वो कुछ स्पेशल तवा, तो देख लो तो दिखाने लगा। तो वो ये दिखा रहा था कि इसमें जैसे आपको रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी बनाने के बाद वो पलटनी होती है, और फिर वो पलट करके फिर वो आप उसको गैस पे रखते हो तो वो फूलती है। उसमें ये था कि बस आपने एक बार रोटी रख के पलट दी, पलटनी नहीं है, वो सीधे सीधे उसको बना देगा। और उसमें मोल भाव चल रहा था काफी, मोल की वो बता रहा था कि 500 रुपए का है, तो इधर से आ रहा था कि ये 150 का है, ऐसा कुछ चल रहा था। तो हमारी एक बुआ जो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहुत मजेदार बोला, उन्होंने कहा ये बताओ, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि बुआ जी लेना है कि नहीं लेना है, अब बुआ सास होती है, तो उन्होंने बोला कि देखो एक बात बताओ, जब तुमने आटा गूंद लेना है, उसी गोली बना लेनी है, उसको बेल लेना है, उसको तवे पे डालना है, तो पलटने में मौत आ रही तुमको जिसके चक्कर में, मतलब सिर्फ पलटना ही था। और वो 1.5 घंटे का डिस्कशन चला कि तवा कितने में लिया जा सकता है। उस एक सेंटेंस ने जो है ना वो सब खत्म कर दे कि बात तो ठीक ही है कि भैया तो ऐसी मशीन दो कि भाई
जो आई रही है आजकल बड़ी बड़ी, उसमें तो आती है कि भाई आटा डालो इधर से रोटी निकल रही, तो चलो वो भी एक के आराम मिलेगा, पर बाकी मतलब 90%। तो ऐसे हम बहुत सारे काम कर रहे हैं कि भाई जैसे पंखा लगा दिया तो बटन दबाने में क्या आफत आ रही है, और उसके लिए हम रिमोट और फिर एलेक्सा और फिर तमाम चीजें। भाई जब पंखा है ही और बटन ही तो दबाना है, हाथ से तो चलाना नहीं है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हम सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि वो बस है। ठीक हो गया, चलिए बस, बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10वीं तक का भैया पूरा। हाँ और कुछ बाकी है तो आप? हाँ मैं करता हूँ, बस मैं थोड़ा पानी पी के आ जाऊँ, एक गिलास में, अपनी बोतल नहीं लाया। यहाँ पे नहीं था आपका बोतल? आज लाइन लाया मैं, अगर छोड़ गया। बराबर। થોડું છે બાળકોને લગતા કોઈ ઘણા મોટા બાળકોને આવા એક્ઝામ્પલ કન્ઝ્યુમરિઝમ છે બહુ સારા હા જે છે તમે એમની સિમ્પલ વસ્તુમાં એમાં એટલે કીધું કે ઉપયોગતા કલા પણ એમાંથી હકીકતમાં લખવા માટે અને લખવાની સ્પીડ ને કમ્ફર્ટ માટેનું જે પ્લાન છે એ તો તમે 10 રૂપિયાની કીધું તો આવી જાય, બધી 50 રૂપિયાની આવી જ જાય. આપણે યા તો કોઈ એવા છોકરા નહીં છે જે બહુ મોટું પ્લાન પણ એનું આવું બેગ ને આવા બધામાં ચપ્પલમાં શૂઝમાં જતું તો લેવાનું સારું, નહીં લેવાનું નહીં, પણ એનો સદુપયોગ થાય છે. એકચ્યુઅલી બ્રાન્ડેડ શૂઝને બધી વસ્તુની સારી વાત એ છે કે તૂટતા નથી, કમ્ફર્ટ આપે છે, પણ જો ઉપયોગિતા કલા મુજબ છે એ વ્યવહારમાં નહીં સમાવેશ થાય તો એ મોંઘી વસ્તુ એટલે અમુક સમય બદલાવીએ તા ઓકે બસ આપણે યાર તો કોઈ ઓછું છે. हाँ ठीक है, ये ठीक हो गया, चलिए इसको थोड़ा दो दिन चला कंट्रोल करता नेक्स्ट जा रहे हैं. हाँ उसको तो रखता ही हूँ। तो जब हमने, हाँ अब लोग आगे आ सकते हैं, अब आप आगे आ सकते हैं और थोड़ा अटेंटिव हो सकते हैं। બેસવાનું છે ને તો નિયમ જ આપણે રાખજો. મારી યારે કોણ આવ્યું ગયા વર્ષે મને ખબર નથી, મહેસાણા સ્કૂલમાં હું ગયો હતો એક્ઝોટિકા કરીને. ત્યાં વસ્તુ ટીચર્સની અંદર એટલીસ્ટ એના પાછળ જગ્યા દેખાતી જ નથી, એવા આગળ જ બેઠા હોય અને ટીચર તરીકે આ બહુ સ્થૂળ વસ્તુ છે પણ આ એના બહુ ઉપયોગી છે. તમે વિદ્યાર્થીના આના વિના કઈ નહીં, એટલે જ્યાં સુધી આગળ જગ્યા છે ત્યાં સુધી આગળ જ. चलिए बढ़िया, जितना आगे बैठ सकते हैं बैठो. जो चेयर लेकर देવું પડે તો એની પર ચેર રાખવી, પણ આગળ જગ્યા ખાલી ના હા એ તો
नहीं ना, हाँ अभी तो बंद कर सकते हैं। कर दूं बंद? अभी तो कोई जरूरत नहीं, जरूरत पड़ेगी तो हाँ बोर्ड की जरूरत तो है, इसको हटा देते हैं। तीन दिन की चर्चा के ऊपर आपका क्या कहना है? क्या लग रहा है आपको, या कैसा महसूस हो रहा है? इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा ठीक से। थोड़ा सा पानी मारना पड़ेगा सर। तो बताइए कैसा लग रहा है और क्या कहना है? ये 3 दिन की जो है, हाँ जी अब थोड़ा इधर ध्यान देते हैं। ये 3 दिन की खासियत क्या रही? 5 दिन हो गए। अच्छा, तो क्या विशेषता रही इन 5 दिन की बताइए? क्या लग रहा है इन 5 दिनों में क्या कुछ खास हुआ? कोई नई चीज पे ध्यान गया? कोई नई चीज पे ध्यान गया? बताइए कुलदीप जी। जो नए लोग हैं उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन तो गया ही होगा उनका, है ना? और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इससे पहले किसी स्कूल में पढ़ाया, वहां भी कुछ ट्रेनिंग सेशन तो होते ही थे, नहीं होते थे? ट्रेनिंग तो होती लेकिन ज्यादातर वो स्क्रिप्ट वाले पार्ट, हाँ है ना, हाँ हाँ भैया, हाँ लेकिन ऐसी वैसी कोई सीरीज नहीं। हाँ पूरे ठीक, एक साल में सिर्फ 15-20 मीटिंग होती है हाँ बच्चों के बारे में। ठीक। चलिए तो मैं 1-2 बातें कह देता हूँ, फिर हम नई चीजों पे जाएंगे। एक तो पिछले 4-5 दिन इस महीने में काफी उत्साहजनक रहे कि मेरा अनुमान नहीं था कि ये बात इतने आगे जाएगी जब हमने डिजाइन किया था, इसीलिए मैंने उसके लिए 2 दिन रखे थे, अगर आपने वो देखा होगा। मुझे लगा था क्योंकि वो बाबा जी का पाठ्यक्रम जो है वो एकदम नया है और उसकी मतलब उसका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है, तो मेरा तो इतनी कल्पना थी कि हम उसका थोड़ा परिचय देंगे और उस परिचय में थोड़ा बहुत उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से हम विचार कर पाए उस पर, वो काफी उत्साहजनक है ना। हम उसके कुछ भाग को तो पकड़ पाए। तो कुल मिला के ये देखेंगे कि हमारा विचार थोड़ा चला, है ना। एक शिक्षक के रूप में हमारा थोड़ा विचार चला, ये ठीक हो गया। और शिक्षक के लिए ये जरूरी है कि उसका विचार चले, ये ठीक है। तो बेसिकली विचार कहाँ की जगह है? विचार बेसिकली वृत्ति की जगह है, जहां विचार चल रहा है ना। है दिख नहीं रहा है? ब्लैक में लिखूं? अभी दिख रहा है? तो विचार कहाँ की जगह है? वृत्ति की जगह। तो ये हमको ऐसा लग रहा है कि, है ना,
आपस में कुछ जरूरी बात है? तो अब थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। ये ठीक हो गया? तो बेसिकली ये विचार जब हम करते हैं तो इसमें क्या 10 मिनट में 20 मिनट में ये बात रख दूं कि जब हम ये विचार करने जाते हैं तो इसमें बाधाएं क्या क्या हैं। ये ठीक हो गया? जैसे हम ये जानते ही हैं कि हमारे अंदर कुछ मान्यताएं होती हैं। ये ठीक है ना? तो मैं अपना एक उदाहरण देता हूं। सुबह मैं पारस भाई से बात कर ही रहा था, तो देखिए मेरी जो मतलब जिसको हम बोलते हैं कि जो मेरा जीवन यात्रा में जो जो जब हम विचार का काम किसी न किसी विचार से तो जुड़ते ही हैं। तो जिस विचार से मैं पहली बार जुड़ा था वो विचार ये था कि भारतीय परंपरा मतलब ये खासतौर पर अंग्रेजों वाला जो भाग है इसने बहुत नुकसान किया है। इसलिए आधुनिक शिक्षा के प्रति और आधुनिक सुविधाओं के प्रति एक प्रकार का मेरा नेगेटिव वो था कि इसकी वजह से ही बहुत कुछ गड़बड़ होता है। ये इतना गहरा है कि अभी भी जब मैं लैपटॉप पे पीपीटी बनाता हूं तो मैं बहुत कंफर्ट महसूस नहीं करता हूं, मुझे बहुत दम लगाना पड़ता है। ये बात पकड़ में? मैं अपनी ही, जबकि अब मैं इसको लेके हल्का हूं, अब ऐसा नहीं है कि उतना भारी, पर फिर भी मेरे को वो ताकत लगानी पड़ती है। वो बार मेरा अगर ध्यान नहीं बना रहे तो मेरा प्रेजेंटेशन खराब हो सकता है, क्योंकि मुझको ऐसा लगता था एक समय में कि ये सब फालतू के काम है। क्योंकि मसूरी में जब होते थे तो हमको लगता, और अभी भी हमको ऐसी आदत है, जैसे अब शिविर लेने की आदत है तो अपने को बोर्ड चाहिए और अपन मान लीजिए शुरू हो जाते हैं और फिर जैसे जैसे बात निकलती वैसे वैसे चलता है। पहले से ही कोई तैयार कर लेना ऐसा मुझको बहुत भाता नहीं था। तो मुझको क्या लगाना पड़ता है, बहुत दम लगाना पड़ता है अभी भी। ठीक, इसलिए आज मैं कुछ अटक रहा था तो फिर क्योंकि पारस भाई उसमें थोड़ा टेक्निकल साउंड है तो फिर उन्होंने मेरी मदद की। ये ठीक हो गया? तो कुल मिला के क्या है, हमारी अपने को लेकर, तो शिक्षक को लेकर की क्या क्या मान्यता हो सकती है, क्यों शिक्षक विचार नहीं कर पाते हैं, जैसे आप लोग थोड़ा कर पाए इसीलिए मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ा रहा हूं और ताकि हम और कर पाए। लेकिन कहां कहां बाधा आएगी, तो देखिए शिक्षक के रूप में हमारी क्या क्या मान्यताएं हो सकती। तो एक मान्यता तो शिक्षक के रूप में यह हो सकती कि शिक्षक क्या है, कर्मचारी है। क्योंकि आप 9 से 5 आते हो, आपका रजिस्टर में साइन होते हैं, आप किसी जगह हाजिरी लगाते हो, ठीक है। कर्मचारी का क्या काम होता है, उसका काम है निर्देशों का पालन करना। मोटे तौर पे कोई उसको बताता है और वो करता है। तो कभी कभी कर्मचारी होने के नाते मतलब अगर वो हमारे अंदर आ गया तो कभी कभी लगता है कि अच्छा सोचने का काम किसका है, या तो मतलब मैनेजमेंट का, वो विचार करे, वो विचार करके दे और हम कर लेंगे, ये भी आ सकता है। ये पकड़ में? तो कई बार हमको ये लग सकता है क्योंकि पारस भाई एज ए डायरेक्टर हैं या प्रवीण भाई एज ए प्रिंसिपल हैं या मान लीजिए मैं एज ए एडवाइजर हूं, तो सोचने का काम हमारा, इनका, ये भी बाधा आ सकती है। आती है कि नहीं आती ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे अंदर आती थी, ठीक है, और अभी भी वो कभी कभी उसका, जिसको ग्लिम्सेस बोलते हैं अंग्रेजी में, ग्लिम्सेस माने उसकी एक झलक, झलक समझते हैं है ना, उसकी एक झलक बनी रहती है। ये ठीक हो गया? तो वो भी एक बाधा हमारे उसमें आ सकती है, ठीक। तो उससे क्या होगा, वो हमारे विचार पक्ष को क्या नहीं करेगा, फैलाएगा नहीं, ठीक। जब मैं अपने आप को सीमित दायरे में देख रहा हूं, ये ठीक हो गया। दूसरा, विषयगत, है ना, विषयगत पहचान। विषयगत पहचान का मतलब
मेरा सोचना कितना है जितना मेरा विषय में मुझे पढ़ाना है, ये भी आपको एक शिक्षक के रूप में इवॉल्व होने में जो बाधा आएगी। एक शिक्षक का क्या मतलब है? एक्चुअल में एक शिक्षक को, शिक्षक की यात्रा है शिक्षाविद होने की। शिक्षाविद होने का क्या मतलब है? वो शिक्षा का दार्शनिक है, वो शिक्षा विचारक है, वो शिक्षा पे विचार करता है। तो शिक्षा पे विचार करने के लिए वो अपने को कहाँ, उसकी जो अपनी पहचान है अपने भीतर, वो अपने आप को कैसे देख रहा है। ठीक, तो अगर वो अपने आप को केवल कर्मचारी के रूप में देख रहा है तो विचार शक्ति कैसी चलेगी? है ना भाई, टाइम से आ जाऊं, टाइम से अपनी क्लास में चला जाऊं, टाइम से पढ़ा लूं, तो क्या है, शिक्षक के रूप में इवॉल्व नहीं होगा। ठीक, और जो काम हम करने जा रहे हैं या जो काम हम करने की सोच रहे हैं वो शिक्षाविद हुए बिना नहीं चलेगा। मैं क्लासरूम में पढ़ाऊं या क्लासरूम में नहीं पढ़ाऊं। ठीक, तो वही जो व्यवहार मूल्य की बात है कि फाइनली मेरी समाज में कोई भागीदारी, मैं शिक्षा पे विचार क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं किसी व्यवहार मूल्य से इसको जोड़ रहा हूं। मुझे समाज में कोई भागीदारी करनी है, समाज में मुझे कोई, है ना, मैं सामाजिक व्यक्ति भी तो हूं। तो जब तक मैं अपने आप को उस बड़ी पहचान से नहीं जोड़ लेता तब तक ये बाध्यता मेरे अंदर आएगा। इसलिए क्या होगा, हमको लगेगा कि हम तो 9 से 5 काम कर ही रहे हैं, टाइम से आ ही रहे हैं, छुट्टी भी नहीं मार रहे हैं, फिर भी वो बात नहीं बन रही है। ठीक है, फिर भी वो एक स्ट्रगल बना रहता है। ऐसे ही विषयगत पहचान भी हमारी फिक्स हो जाती है। मैं साइंस का टीचर हूं, मैं गणित का टीचर हूं, या मैं हिंदी का टीचर हूं। ठीक है, तो हिंदी कैसे पढ़ानी है इस पे मैं विचार करूंगा। तो आप हिंदी पे ही विचार कर पाएंगे। और हम बात कर रहे हैं किसकी? सीधे सीधे जीवन मूल्यों की बात कर रहे हैं। तो जीवन मूल्यों पे विचार करने के लिए केवल हिंदी का शिक्षक होने से काम नहीं चलेगा। फाइनली शिक्षा की समस्या क्या है और फाइनली शिक्षा का उद्देश्य क्या है, वो जब तक हमारे भीतर नहीं चलेगा विचार, तब तक क्या नहीं होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये ठीक हो गया? ठीक, तो ऐसा क्या होता है, ये हमारे विचार में, मतलब जो हम शिक्षक के रूप में जो विकास होना है हमारा, उसमें ये बाधा है कि मैं अपने आप को कर्मचारी के रूप में देखूं कि मैं अपने आप को केवल विषयगत शिक्षक के रूप में देखूं। ये ठीक हो गया? एक्चुअल में आप देखेंगे तो हम सब शिक्षक ही, अगर दूसरे भाग में मैं देखूं, जनरली जो और क्या, जैसे जनरली जो क्लासरूम में नहीं पढ़ा रहे हैं, स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, जैसे घर गांव के लोग, ठीक है, वो ये मान के चलते हैं कि हम शिक्षक नहीं, इसलिए हम बच्चों के आगे कुछ भी बोल सकते हैं। हमारा ध्यान नहीं जाता है ना कि भाई हमारे आसपास भी तो छोटे लोग हैं, बच्चे हैं ना हमारे, हम क्लासरूम में पढ़ाए नहीं पढ़ाए। ठीक, तो हमको लगता है शिक्षा देने का काम किसका है? केवल गुरुजी लोगों का है। इसलिए हमारा आचरण कैसा भी रहे, इसीलिए बच्चों के साथ समस्या क्या आ रही है, क्योंकि बाहर कोई भी अपनी जिम्मेदारी को उस रूप में नहीं स्वीकार रहा है कि हमसे कोई कुछ सीख रहा है। ठीक, ये बात पकड़ में। इसलिए गांव में क्या है, जो शिक्षक नहीं है, इसलिए शिक्षक कुछ गड़बड़ी करता है तो अरे बाप रे बाप, उसने टीचर को कैसा कर दिया, और खुद वैसे ही कर रहा है, क्योंकि वो मानता ही है कि ये मेरा काम नहीं है। तो जब हम पेरेंटिंग पे जाएंगे तो बताना पड़ेगा कि फाइनली शिक्षक कौन है, जिससे कोई भी सीख रहा है ना। बच्चे जिसको भी देख रहे हैं वो सब शिक्षक है। तो भले ही आप हिंदी गणित नहीं पढ़ा रहे हैं, पर शिक्षक तो आप भी, आप कैसे खाना खाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, वो सब उसका हिस्सा है। पर एक शिक्षक के रूप में अगर हम इवॉल्व होना चाहते हैं तो ये तीसरी चीज क्या हो गई, वर्ग अनुसार पहचान।
वर्ग अनुसार पहचान माने हम प्राइमरी के शिक्षक हैं, या हम जूनियर क्लास के शिक्षक हैं, हम सीनियर क्लास के शिक्षक हैं। ये भी हमारी सीमा को क्या करेगा, बांधेगा। तो हम 6ठी 7वीं 8वीं के शिक्षक हैं, तो 9वीं 10वीं के बच्चों के बारे में हमारा विचार, मतलब उनको क्या हम समझा सकते हैं, क्या सिखा सकते हैं, ये हमारा विचार नहीं चलता है। या हम 9वीं 10वीं के हैं, हम छोटे बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, ये हमारा विचार नहीं चलता है ना। वो कैसे देखते हैं, वो कैसे सुनते हैं, ये ठीक हो। इसलिए क्या होता है, तो अब सवाल ये है कि ये जो विचार चलने का है, ये कोई सीमा में बंधी हुई चीज है? विचार तो कोई असीमित चीज है, ठीक है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं एक शिक्षक के रूप में कि आज शनिवार हो गया, मैं सोमवार को ही सोचूंगा, संडे तो छुट्टी रहती है? हालांकि ऐसा भी आता है, अगर हमसे मतलब सभी जगह, कई जगह होता है कि आपने कुछ कर पाए नहीं, कल संडे था, तो संडे था तो सोचना बंद हो गया क्या? सवाल तो ये है ना, मतलब कभी हमारी भाषा देखिए ऐसी होती है ना, ठीक है। तो शरीर के करने के मामले में सीमा है कि मान लीजिए आपको बोला जाए कि भाई आपको 50 कॉपियां जांचनी है सबको, ऐसा ये शरीर की सीमा का काम है। उसमें आप बोल सकते हैं कि जी उसको 2 घंटे मिले थे इसलिए वो ज्यादा जांच पाया, मुझको आधा ही घंटा मिला था क्योंकि मैं बिजी था तो मैं आधा घंटा ही वो कर पाया। पर ऐसा बहाना हम बना सकते हैं कि उसको 1 घंटा मिला था सोचने को और मेरे को आधा ही घंटा मिला था इसलिए मैं कम सोचा। अभी ध्यान गया इन बातों पे, मतलब अगर ध्यान देंगे तो हम ऐसे फंसते हैं अक्सर। ये ठीक हो गया। तो जैसे क्लासरूम में नहीं पढ़ाते, तो फिर मैं क्लासरूम में नहीं पढ़ा रहा तो मेरा विचार क्या चल रहा है? तो विचार की कोई सीमा ही नहीं है, और हम शिक्षक है तो हमारा विचार किस पे चलेगा अधिकतम समय? मतलब ये हमको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए पैर में चोट लग गई तो उस पर भी विचार चलेगा, अब शाम को खाना बनाना है तो थोड़ा उस पर भी विचार चलेगा। पर आप ये देखिए, कई बार बात हो गई कि जो हम रोज रोज कर रहे हैं उसका एक अभ्यास हो गया है ना। आप रोज एक ही मार्ग से जाते हैं, शाम को खाना बनाने का एक ही है, आधे घंटे मतलब कुछ भी नहीं करना है ना, सब्जी काटनी, वो नमक मिर्च तेल मसाले का सब फिक्स ही है, इतना ही सोचना है कि आज क्या बनाना है। अब उस पर विचार नहीं करना है ना, मतलब वृत्ति किस पे चलेगी, वो तो ऑटोमेटिक हो रहा है। आप स्कूल आ रहे हो, ड्रेस पहन रहे हो, बहुत सारे काम ऑटोमेशन में चल रहे हैं। तो हकीकत आप ये देखेंगे कि हमारा विचार इसका मतलब चल ही नहीं रहा है कि जब मैं स्कूल पहुंचूंगा तभी मैं सोचना शुरू करूंगा, 9 बजे के पहले तो मैं सोचूंगा ही नहीं कि पढ़ाना कैसे है, या ठीक है। तो हमारा विचार जो है ना समय से बंधा हुआ नहीं हो सकता, हमारा विचार जो है क्लास से बंधा हुआ नहीं हो, शिक्षक के रूप में बोल, इसके बिना हम इवॉल्व नहीं होंगे, है ना। तो 24 घंटे ही वो विचार चलेगा अगर हम शिक्षक के रूप में इवॉल्व हो सकते हैं। ये जरूर बोल सकते हैं कि भाई मेरे को टाइम नहीं मिला पीपीटी बनाने का या लिखने का, वो ठीक है क्योंकि वो शरीर से वाला काम है, भाई संडे को कहीं जाना था। पर अगर आपका सोचा हुआ है तो पीपीटी तो 15-20 मिनट में बन जाती है, आधे घंटे में बन जाती है। तो विचार का काम तो अगर सतत नहीं चल रहा है तो फिर हमको ये सोचना पड़ेगा कि फिर हम शिक्षक हैं कि हम शिक्षक नहीं। शिक्षक तो मतलब जो भी है, जैसे आप ये देखिए कि भाई कोई भी काम सतत क्या विचार चल रहा है, मैं वही हूं एक्चुअल में, और वही प्रोड्यूस भी होता है और वही रिजल्ट लाता है। आप भौतिक दुनिया में भी देखेंगे, भौतिक दुनिया में मान ले जाए समर डायमंड है, ये भी तो कहीं से शुरू हुआ होगा, ठीक है। तो अगर ये 24 घंटे उनके विचार का हिस्सा नहीं बनता तो रिजल्ट भी तभी आता है, ठीक है। अगर जो इसके टॉप मैनेजमेंट है वो भी ये सोचे कि संडे को नहीं सोचेंगे हम कारोबार के बारे में, है ना, और अब तो 1 हफ्ते की छुट्टी, अब हम कारोबार के बारे में नहीं सोचेंगे, तो कारोबार तो ठप होना ही है। तो मेरा ये ध्यान बना रहना कि मेरा सतत विचार क्या चल रहा है, बाकी के समय में बाकी जो चीजें हैं
वो तो कुछ ऑटोमेशन में जा ही रही है। ये पकड़ में आ रही बात? बताइए क्या पकड़ में आया, रिपीट करके बताइए कि खाली एक महाभारती कथा हो गई। हाँ, क्या रिपीट हुआ? रिपीट करके बताइए जो। हाँ, विचार 24 घंटे चलता ही है, चलता है। चल किस बिंदु पर आए वो मेरी इससे तय होता है कि मैं अपने को कैसे देखता हूँ। हाँ ठीक है, और मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा बता पाए जी। मैं क्या कहने की कोशिश, ये दिक्कत तो भैया सभी में आती है, मुझ में तो आती है बिल्कुल कि शायद में विषय कोई टॉपिक दूसरा चल रहा है तो मेरा माइंड ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है कि शायद या गुजराती की बात कर रहे मतलब अपना हाँ ये इस बहुत मतलब अच्छी मतलब बधाई है कि आप उसे बता पा रहे हैं ईमानदारी से। ऐसा सबके साथ होता है, हमारा हम ऑन ऑफ और स्विच है हमारा। अच्छा अब ये हमारी बात नहीं चल रही है ना, जैसे शिविर में भी होता है, कोई सवाल पूछेगा बाकी बंद हो जाते हैं। अच्छा अब इसका सवाल है, ध्यान देगा तो वो सबका ही सवाल है ना। तो वही बात। और जो भी हमारे विचार में चल रहा है इसके अकॉर्डिंग कोई हमारे साथ कोई भी इंसिडेंट बनता है तो तुरंत वो लिंक हो जाता है। तो ये 24 घंटे या ऐसा ट्राई करेंगे कि तो शायद जो होश में रहने वाली बात कुछ की थी हमने अभ्यास सत्र वाले कि 24 घंटे यार आप पढ़ा करें तब कितना होश में रह पाते या डेली रूटीन में भी कितना होश में रहकर व्यवहार कर पाते, तो ये सोचने वाली बात है। तो कभी कभार स्विच ऑन ऑफ हो जाता है पर उसके बाद पता चलता है कि क्या ये गलत हो गया है। एट अ टाइम भी शायद पता चल जाएगा तो हम वो मूवमेंट करने में रुक जाएंगे और वो घटना शायद बने भी ना। ठीक बात। बताइए क्या पकड़ में आया? ऐसा ऑन ऑफ होता है कि नहीं होता है? हाँ भैया आपने बताया कि विचार विचार के पीछे क्या छुपा, तो आपने एक मान्यता, तो कई विचार तो हमारे तो मान्यता ऐसी पड़ी हुई है, मान्यता की वजह से हम विचार नहीं कर पाते। जैसे कि जेएमएस में क्लास ले रहे थे तो मैंने भी में कनेक्ट कर पा रहा हूँ, जब भी बच्चे साइंस का कोई क्वेश्चन करते तो मैं तुरंत ही बोल लेता कि वो जल्दी से आपको आंसर देंगे, क्योंकि मेरे मन में मान्यता पड़ी हुई है कि वो साइंस का क्वेश्चन है। अब मुझे कनेक्ट होता है कि ये भी मैं उसको आंसर दे सकता हूँ, इस तरह से सोच सकते जी। इसका कि बहाने बनाते हैं। हाँ मतलब वो बहाना ऑटोमेटिक ही है। मैं जनरली क्या है, कई बार मैं बच्चों से ही बात करता था, आपसे भी कर सकता हूँ। हम अक्सर दो तरह के बहाने बनाते हैं, एक सच्चा बहाना होता है, एक झूठा बहाना होता है। झूठा बहाना तो झूठ कम ही होता है, मतलब आप मतलब मैं को अगर ऑफिस नहीं आना, मैंने बोल दिया कि बीवी की तबीयत खराब है या मेरी तबीयत खराब है, बच्चों की तबीयत खराब, ऐसा साफ साफ झूठ भी कई लोग बोलते ही, पर आप नोट करेंगे कि ये कम समय होता है, जैसे बच्चे भी करते थे। अक्सर हम यही वाला, जैसे सच्चा बहाना ये है कि हमको आधा घंटा ही मिला था सोचने को, ठीक है 5 बजे 5 क्योंकि 4:30 बजे आपने बोला था सोचने को और 5 बजे तो खत्म हो गया था, उसके बाद मैंने सोचा ठीक है। अब बात टेक्निकली देखेंगे तो आप बोल नहीं सकते कि हाँ बात तो ठीक है, बात तो 5 बजे तक चली थी, ठीक। जैसे बच्चे भी करते थे ना कि होमवर्क क्यों नहीं किया, कि जी घर में लाइट नहीं थी, या शाम को पिताजी आके या गांव में शराब वराब पी के कुछ कर दिया था, ठीक है। तो ऐसा झूठ नहीं बोलते थे कि मेरे पेट में दर्द था, ऐसा एक आदि बोलता था, बाकी सब ये बोलते थे कि घर में पिताजी शराब पीते थे और अल्लाह मचाते हैं, या लाइट नहीं थी। तो ये बताओ कि बाकी काम रुका कोई क्या, खाना छूटा क्या? नहीं। खेलना खेला, हाँ खेला भी है, खाना भी खाया, ठीक है, आस पड़ोस से गप भी मारी, तो सिर्फ पढ़ाई कैसे छूट गई?
और किसी ने तो उसी में किया, किसी ने लालटेन जलाया, किसी ने कुछ किया। तो इस तरह से देखेंगे कि उसके पिताजी का शराब पीने का जो उसने बहाना बनाया, उस है ना, वो बहाना जो है मैं उसको काट नहीं सकता। मतलब वो तथ्यात्मक रूप से सही बात, पर उसकी वजह से वो नहीं कर पाया। ये क्या कर रहा है वो केवल, तो ऐसा ही है। मतलब वो इसी को हम सच्चा बहाना, मतलब सच्चा मतलब सच भी नहीं बोलेंगे उसको, फैक्ट की दृष्टि से जो है वो ठीक है कि भाई कल संडे था, तो संडे था तो जाहिर सी बात है संडे को आप शिक्षण कार्य नहीं कर रहे हैं, पर आप शिक्षा के बारे में नहीं, हम शिक्षा के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि कल संडे था। तो ये वो उस बहाने के अंतर्गत आता है ना। या मैं बाजार चला गया था, तो बाजार चलने में क्या विचार करना था, कायदे से पूछा जाए। तो जैसे हम बाजार जा रहे हैं तो बाइक चला रहे हैं और बाजार जाके सामान खरीदना है, लेकिन मेरी क्लास में कल एक बच्चे ने सवाल पूछा था या कल ऐसी घटना घटी थी, उसके बारे में ऐसे हम विचार को रोक ही कैसे सकते हैं। कायदे से तो वो चलता ही है अगर हम अपने को शिक्षक के रूप में देख रहे हैं। नहीं तो जैसे ही वो 5 मतलब स्कूल से बाहर निकले हम कुछ और हो जाते हैं। इसीलिए शिक्षक जो है वो 5 बजे के बाद जो है वो मानता है कि हम 5 बजे के बाद शिक्षक नहीं है क्या, या हम संडे का शिक्षक नहीं है, तो हम केवल क्लासरूम में ही शिक्षक हैं। ऐसा नहीं, मतलब आप व्यवहारिक दृष्टि से देखेंगे ऐसा तो नहीं है ना कि मैं संडे को शिक्षक नहीं हूं। ठीक है, जैसे मान ले जाए आप मुझे कुछ फोन करें, ठीक है, और मैं बोलूं कि नहीं मैं तो जब उधर आऊंगा तभी सलाह दूंगा क्योंकि मैं अभी यहाँ नहीं हूं, तो तकनीकी रूप से आप और मैं बोल ही सकता हूं कि भाई मैं अभी घर पे और मैं कुछ और काम कर रहा हूं, आप मना भी नहीं कर सकते। ठीक है, या मेरा दिमाग ही तब चलेगा जब तक मैं यहाँ कालेगढ़ नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि मैं 11 से 20 के बीच में रहूंगा तभी सोचूंगा। तो ये जो हमारी बारीक मान्यताएं हैं शिक्षक के रूप में, वो हमारे विकास होने से रोकती है। तो एक शिक्षक के रूप में तो अपने को डायनेमिक पर्सनैलिटी होने की जरूरत है ना। आप भले ही 7वीं में पढ़ा रहे हो, पर आपके पास क्लास 1 के बारे में और खासतौर पर हम तो जीवन वैल्यू की बात कर रहे हैं। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि इतिहास का शिक्षक अब साइंस को भी पढ़ाए, है ना, पर साइंस की क्लास में क्या जीवन मूल्य में बात हो सकती है। ये जो हमारा विचार पक्ष है, क्या ये समय से बंधा हुआ है या क्या ये हमारी क्लास से बंधा हुआ है शिक्षक के रूप में, और क्या हम इसको बांध पाएंगे? कायदे से बांध नहीं पाएंगे। अगर हम अपने को शिक्षक के रूप में पहचानते हैं तो ये फिर चलता ही है। अगर ये चल नहीं रहा है तो फिर अपने को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी कि अपने को मैं कहाँ से देख रहा हूं। और ऐसा भी नहीं कि मेरे बोलने से चलने लग जाएगा या मेरे बोलने से रुकने लग जाए। देखिए विचार तो अभी भी 24 घंटे चल रहा है हमारा, विचार तो कोई रुकने वाली चीज नहीं है ना। आप अभी जो आप बोल रहे हो तो साथ में जो मतलब विचार बोल रहे हो जी, विचार बोल रहे हो, तो साथ में एक दूसरा भी साथ में चलता है, ये सब लोग देख रहे हैं कैसे बैठे हैं, तो वो कैसे, मतलब एक तो विचार आप बोल नहीं रहे, जो आ रहा है वो बोल रहे, और साथ में ये भी चल रहा है, तो वो एक साथ में चल रहा है मतलब आप बोल रहे हो, आप बोल रहे हो तो विचार बोल रहे हो, जो कंटिन्यूअसली विचार आ रहा है वो आप अभी बोल रहे हो, तो साथ में आप देख भी रहे हो हम लोगों को, तो वो भी विचार कुछ होगी कि भाई कैसे बैठा है या ये सुन रहा है या तो वो एक ही साथ, तो उससे हाँ वो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जैसे मैं अभी सोच कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ विचार से ही बोल रहा हूँ, और इस बीच में ये भी विचार आ रहा है कि कोई सुन रहा है कि कोई नहीं सुन रहा है, तो मैं उसको जाके सीधे बात ही कर, मतलब मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं उससे इरिटेट तो नहीं हो रहा हूँ। फिर वहां पे वो संबंध वाली बात, मतलब मैं ये मान के चलूं कि अगर कोई मेरा नहीं सुन रहा है तो मेरा अपमान ही कर रहा है ना। हाँ भैया पिक्चर पे मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये भी देखते हैं कि जैसे आप बोल रहे हैं तो ऑटोमोटिव सब चल रहा है, तो आपको देख रहा हूँ कि कुछ चल रहा है, यहाँ पे देख रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें ना तो हमारा ध्यान नहीं चलता, तो काफी निरर्थक चीजें चलती रही। तो जब किसी सार्थक चीज के बारे में हम ध्यान देते हैं तो उस पर हम ज्यादा सोच पाते हैं, निरर्थक चीजें तो चलती रहती है वो बहुत मतलब
ऑटोमोटिव होता है। बिल्कुल, वो तो ठीक ही बात है। तो हमारा जो विचार पक्ष है शिक्षा को लेकर के, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो कब ज्यादा बेहतर से एक्टिवेट हो पाएगा, जब हम उसको अपनी किसी सीमा में नहीं बांधेंगे, है ना। जैसे विषयगत की भी एक सीमा है, तो अगर मैं अपनी सीमा में बांध लूंगा तो फिर वो शिक्षक के रूप में विचार करने का मतलब बेसिकली उसको फैलाना, मैं क्या सोचता हूँ, कैसे समझता हूँ, इसका क्या समाधान हो सकता है ना। या संसार में कोई समस्या मान लिया जाए, जैसे कोई दुनिया में अभी करप्शन की और पॉल्यूशन की समस्या चल रही, एक शिक्षक के रूप में हमारा कोई विचार है उसमें कि नहीं, या जब तक हम पर्यावरण मंत्री नहीं बन जाएंगे तब तक सोचेंगे नहीं इसके बारे में। अभी तो ऐसे ही कर रहे हैं ना, हम इंतजार कर रहे हैं भाई एक बढ़िया स्कूल कैसे चले, सामान्य सी बात है। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जब तक मैं प्रिंसिपल नहीं बनूंगा तब तक सोचूंगा ही नहीं। और हकीकत ये है कि जो सोच नहीं रहा है वो पद पे भी नहीं सोच पाएगा, क्योंकि विचार कोई पद से जुड़ी हुई चीज नहीं कि जब तक मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठा तब तक वो विचार चलेगा नहीं। माइक 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 हाँ, जैसे मेरा सब्जेक्ट हिंदी था और से 5 मिनट जो हो गया है आपका तो उसमें सभी पीरियड में तो बच्चों को नहीं खेलने देता, तो मैं उनको और सब्जेक्ट प्रेशर वाइज जैसे कुछ जनरल और तो बच्चे कैसे करेंगे, मैं आपको इसके सब्जेक्ट क्यों पढ़ाऊं। हाँ तो बच्चों के अंदर भी वही, बच्चों के अंदर तो वो है ना, वो तो सभी के अंदर है। हाँ आप कुछ बोलो। आप विचार की बात करें तो मैं अभी ऐसा कनेक्ट कर पा रहा हूँ, सही है कि गलत मुझे आप बताएं कि जैसे कि मैं अपने सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, तो हर रोज हर साल वही पढ़ा रहा हूँ, तो कई दिन में ऐसा तो अपने दोस्तों से कह रहा था आज बहुत मजा आया, तो जो मजा आया वाला पार्ट है ना उसमें मैंने विचार ऐड किया इसीलिए मुझे मजा आया, तो वो मुझे ऐसा लगता है। ठीक बात। तो अब हम इसको दर्शन की रोशनी में देखेंगे, तो दर्शन की रोशनी में क्या देखेंगे कि हमारे पास 3 दृष्टि तो है ही, तो कब हमारा विचार जो है फ्रूटफुल होगा, है ना, कब हमारा विचार उस जगह पे पहुंचेगा जब हम एक शिक्षाविद के रूप में अपने आप को देख पाएंगे। तो कब होगा वो भाई, जब तक ये प्रायोरिटी में नहीं आएगा वो होगा ही नहीं, है ना। तो अगर मेरे में न्याय का मतलब है संबंध की स्वीकृति, संबंध की स्वीकृति का मतलब है कि ये बच्चे से मेरा कोई संबंध है, मैंने इसे स्वीकार किया हुआ है, तो जैसे ही मेरा स्वीकार किया हुआ है तो उसका विचार चलेगा मेरे बात की नहीं चलेगा। मान लिया जाए मेरा बेटे को मैंने स्वीकार किया हुआ है, तो मैं यहां हूं, तो क्या मेरे को अभी भी उसको लेकर उसका विचार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, तो मैं सोच ही रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं तब तक नहीं सोचूंगा जब तक मैं घर नहीं पहुंचा। तो बेसिकली मेरा जो पहचान है, अस्तित्वगत पहचान है ना, संबंध में पिता गुरु शिष्य तो बोला ही है, तो मेरी पहचान अस्तित्वगत है। सब्जेक्ट टीचर कर्मचारी ये अस्तित्वगत नहीं है, ये परिस्थिति जन्य पहचान है। ये दो अंतर पकड़ में आ रहा है। एक मेरी पहचान है जो परिस्थिति जन्य है, परिस्थिति जन्य माने इन परिस्थितियों में आप नवोदय विद्यालय में टीचर हो, गणित के टीचर हो, कि साइंस के टीचर हो, कि आप क्लरिकल डिपार्टमेंट में हो, जो भी हो, पर अस्तित्वगत पहचान तो मेरी कुछ है ना। तो शिक्षक क्या है, वो मेरा एक एग्जिस्टेंशियल आइडेंटिटी है, क्योंकि शिक्षक होना तो वो कोई एग्जिस्टेंशियल संबंध है। तो जब तक वो यहां नहीं आएगा तब तक मेरी मान्य, तो क्योंकि प्रिय हित लाभ में क्या होगा, प्रिय हित लाभ में क्या होगा, मान्यता होगा। तो प्रिय हित लाभ में तो ये हो ही सकता है कि भाई 5 बजे के बाद बैठना प्रिय नहीं लगता है ना, या मेरे को थकान लग रही है, ठीक है, या क्योंकि 12वीं क्लास के टीचर को ज्यादा सैलरी मिलती है इसलिए वो ज्यादा सोचे, मैं तो 5वीं का ही टीचर हूँ,
मैं कम सोचूं। यही तो, जब तक वो प्रेरहित लाभ में ही चलेंगी चीजें तब तक वो शिक्षाविद वाला, और उसके बिना जो हम सोच रहे हैं, ये जो हम पिछले 4-5 दिन से कर रहे हैं, ये उतरेगा ही नहीं। ठीक है, और फिर वो जो है कॉन्फ्लिक्ट बना ही रहेगा। हाँ, आप कुछ बोलो। हाँ भैया, तो अभी इस बात में ध्यान जा रहा है कि अभी ना हमारा जो विचार पक्ष है ना, तो कहीं ना कहीं हम जिससे ऑपरेट होते हैं, तो हमारे माइंड में एक पूर्वाभ्यास के आधार कोई ना कोई चित्रण बैठा हुआ है। बिल्कुल। और ऐसे टीचर से हम देखते, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैं 2 साल से 8वीं कक्षा में पढ़ाता हूँ, मेरे को पता है कि किस तरह ही पढ़ाना है, और मैंने ऐसा मान लिया कि मैंने इस तरह पढ़ाया तो बच्चों को आना ही चाहिए। हाँ। एक मेरा और पूर्वाभ्यास हो गया और एक फिक्स पैटर्न हो गया, फिक्स पैटर्न, और इस प्रमाणे में क्लास में जा रहा हूँ और फिर पढ़ा दिया, ये दाखला पूरा सिखा दिया। हम बाद में पीछे से ध्यान जाता है कि बच्चों को रिजल्ट नहीं आया, तो मेरे को ऐसा कोच में रहना पड़ेगा और स्वीकारना पड़ेगा कि ऐसी कैसी योजना बनाइए कि जिस तरह के जिस बच्चे को नहीं आया है उसको आ जाए। और वो कब, हाँ, वो विचार में अब वो कब होगा, मतलब वो विचार कब चलेगा, जब दृष्टि कहाँ से आएगी, नया जन्म उसके बिना नहीं होगा। हाँ, पहले भी आप बता रहे हैं, पहले भी वो भी विचार चला है, लेकिन वो अपने सीमित दायरा से मान्यता आधार या ये की दृष्टि से ही चल रहा है। वो पहले से अभ्यास। देखिए, हम तो बहुत इस तरह मान लिया, इस तरह। मैं आपको बढ़िया चीज बताऊं, देखो मैं हूं गांधीवादी पिताजी की संतान। मैंने जिंदगी में सादगी को बड़ी चीज के रूप में देखा है। हमारे पिताजी और बढ़िया आदमी थे, अपने हाथ से चरखा काटते थे और खादी का कुर्ता पैजामा पहना उन्होंने, और कभी किसी पद, और वो तो प्रोफेसर थे, और जिस दौर के वो लोग थे उस समय उनके साथ के लोग राजनीतिक सत्ता में बड़े पदों पे थे, तो वो चाहते तो धन संपत्ति और तमाम तरह के पद सभी वो कर सकते थे, लेकिन मैंने देखा कि वो एक किसान के रूप में पूरी जिंदगी बिताया और देश भर में कुछ जो भी काम करते रहे। तो मेरे अंदर ये बहुत गहरी स्वीकृति बनी हुई थी कि ये जो बहुत सूट बूट में लोग रहते हैं, है ना, जो सुविधाएं ज्यादा भोगते हैं, उनके पास समझ और ज्ञान होने जैसी कोई चीज नहीं। इसलिए शुरू में हमको सोम भैया पे यही शक हुआ कि पैंट कमीज पहनने वाला आदमी ज्ञान दे कैसे सकता है। हमको लगता ही नहीं था, क्योंकि हमको लगता था ये तो अंग्रेजों का वो है, और जो अंग्रेजों की नकल कर रहा हो उसको क्या ज्ञान होगा। तो शुरू में हमको सोम भैया को, और क्योंकि बात तो ऐसी थी कि आप काट नहीं सकते, तो बड़ी टेंशन ये हो रही थी कि बात तो बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आ रही कि पैंट कमीज वाला आदमी क्यों बोल रहा है। तो कई बार हमको बगड़िया जी की बात सुनने में ज्यादा मजा आता था, क्योंकि वो धोती कुर्ता पहनते हैं, हमारी ऐसी स्वीकृति थी। ये पकड़ में रहा, ऐसे मैं बता रहा हूँ कहाँ से ड्राइव होता है मामला, ऐसे ड्राइव होता है। धीरे धीरे मतलब अगले 5-6 महीने 7 महीने में धीरे धीरे हमको ये पकड़ में आने लगा कि बात कोई चीज है। तो जब तक हम उसको बड़ी दृष्टि से नहीं देखते, है ना, तब तक वो प्रिय हित लाभ में ही रहेगी। इस रूप में बोल। हाँ, कुछ बोलो। अब शुरुआत कर रहे थे ना, तभी ये विचार आया था कि कोई व्यक्ति मुझे मतलब स्वीकार ही नहीं है, फिर उसकी बात मुझे कभी स्वीकार। हाँ, वही, क्योंकि संबंध ही नहीं पहचाना। वही न्याय की बात है ना, जब तक संबंध स्वीकार नहीं हो उसकी बात कैसे स्वीकार हो। हाँ, बोलो। सारी चर्चा से वही निकलता है ना कि विचार पे बात होगी, तो विचार से पहले मेरा मानना है कि हमें किसी बात के प्रति स्वीकृति होनी जरूरी है, ताकि वो आपने जो कहा ना शिक्षक वाला, तो उनमें जब हमें स्वीकृति ही नहीं है स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में या शिक्षक के बारे में, जब हमें स्वीकृति हो जाती है तब हमें समझ में आता है कि समाज में हमारी भागीदारी है, हम समाज के कुछ लगते हैं, तभी हम शिक्षण में काम कर रहे हैं। जो हमारी वो स्वीकृति बन जाती है तभी तो हमें अच्छे विचार आते हैं, वरना स्वीकृति नहीं होती तो हमें वही विचार आते हैं कि स्कूल तक ही हमारा काम है, इससे बाहर निकले तो हमारा कुछ काम नहीं है, स्कूल के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब स्वीकृति होती है तो हम स्कूल से बाहर जाते हैं, तभी भी हमें कुछ अच्छा करने के लिए विचार आते हैं, तो वो सारी बात स्वीकृति और स्वीकृति के दर से आएगी। जब तक वो दृष्टि कहाँ जाएगी, वो न्याय धर्म सत्य से ही आएगी। उसकी सूचना है, उसकी ये है। तो फिर मतलब ये चर्चा क्यों चल रही है, क्योंकि
कई बार ऐसा हो सकता है और कई बार ऐसा होता ही है कि हमको लगता है कि 5 बजे के बाद, पर मजेदार बात है कि फिर आप सोच किस पे रहे, है ना। भाई भारत सरकार हम नहीं चला रहे, ठीक है, मतलब ऐसा कोई बड़ी जिम्मेदारी उस रूप में समाज के हमारे पास नहीं है, ठीक है, या अगले 10 दिनों में हमारे घर में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं है ना, कोई शादी नहीं है, कोई उत्सव नहीं है, कोई उस तरह का कोई ऐसा, मान लीजिए घर में कोई आने वाला कोई बड़ा कार्यक्रम है तो फिर विचार उस पर चलेगा, ये भी एक स्वाभाविक बात है, ठीक है। पर जब हमारे पास कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी उस रूप में नहीं है कि हमको भारत सरकार नहीं चलानी है, गुजरात सरकार नहीं चलानी है, या हमको गांव में कोई अगले 5-7 दिन में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं खड़ा कर देना है, तो फिर हमारा विचार किस पे चल रहा है? कभी ध्यान दिया इस बात? यही हमको थका देता है, क्योंकि हम बाकी समय तो हमारा रूटीन है ना, हम सुबह उठे, नहाए धोए, खाना पीना खाया, नाश्ता किया, आ गए, शाम को 5 बजे फिर बाइक उठाई, फिर घर चले गए, घर जाके जो भी थोड़ा बहुत चाय पानी पिया, खाना पीना बनाया, खाया पिया, सो गए। तो हम सोच क्या रहे हैं फिर? मान ले जाए आप 9 से 5, मान ले जाए 9 से 5 आप शिक्षा पे सोच रहे हैं, तो 5 बजे के बाद क्या सोचोगे आप? भैया ध्यान से सुनने के लिए विचार स्टॉप हो गए हैं? ध्यान से सुनना है, आप बोल रहे हैं मुझे ध्यान से सुनना है, तो विचार रुक जाएगा? विचार रुक नहीं सकता ना, तो मतलब विचार चल रहा है कुछ भी ऐसे, तो फिर मैं हाँ विचार, आप बताइए इस बारे में, ऐसा बता रहे हैं का सवाल थोड़ा सटीक मुझे पकड़ में। हाँ अभी आप ऐसा बता रहे हैं कि अभी जो भी चर्चा हो रही है, आप बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, पर लेकिन हमारे माइंड में कुछ और विचार चल रहा है, तो सुनाई देना और विचार दोनों साथ में चल सकता है। हाँ, फिर वो ध्वनि जाती है, फिर तो वो ध्वनि जा रही है, हाँ ध्वनि सुन नहीं रहा हूँ। जैसे जैसे सुनना देखना क्या है, सुनना देखना क्या है? जब हम ध्यान से सुनते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे हम बोलते हैं मैं सुन के देखता हूँ, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो ध्यान से सुन रहा हूँ वही विचार है? हैं? ध्यान से सुन रहे हैं क्या वही विचार है? ध्यान से सुन रहे हैं, हाँ। तो उस समय क्या चल रहा है कि जब आप सुन रहे हैं तो आपका मन, वृत्ति और एक तरीके से चित्त अलाइनमेंट में आ रहा है, तो वही विचार नहीं, लेकिन वो विचार का हिस्सा है, जो सुन रहे हैं वही विचार का हिस्सा है, उसका विश्लेषण हो रहा है। क्योंकि जैसे जब मैं बोल रहा हूँ, तो जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो फिर आपके अंदर आप इसको फैला रहे हो, आपको कुछ पुरानी चीज याद आ रही है ना, आपको कुछ घटना याद आ रही है, आप इसको पकड़ पा रहे हो, तो ये विचार भी चल रहा है। तो सुनने के साथ वो विचार चले, उसको जो फैला रहे हो आप, मैं जो बोल रहा हूँ उसको जो आप अपने अंदर फैला रहे हो उसको विचार बोल रहे हो। भैया वो विचार अपनी मान्यता के आधार पे विचार करते हैं, तो नहीं मानते। हाँ मान ले जाए, हाँ अगर अगर सुनना कब नहीं होगा कि मान ले जाए आपने मान ही लिया है कि ये तो जीवन विद्या की बात चल रही है और इसको जेएमएस वाले वो करेंगे, तो फिर वो ध्वनि जाएगी, उसमें विचार नहीं चलेगा, वो तो कहीं और ही चल रहा है, क्योंकि आप उसको नहीं फैला रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ। आपको कुछ बोलना है? तो ध्यान को दर्शन में इस तरीके से लिखा है कि एक तो दो तरीके का ध्यान है, एक केंद्रीकृत ध्यान है और आंशिक ध्यान। तो आंशिक ध्यान मतलब जब सुनना, देखना और बोलना है वो एक ही वस्तु पे हो जाए। तो मान लो भैया है वो कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं उसी को सुन रहा हूँ, उसी को बोल रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर जो विचार चल रहा है वो मेरा बोलना है। फर्क इतना है कि वो मैं मुझको बोल रहा हूँ, मैं सामने वाले कोई व्यक्ति के साथ वो बोलना नहीं, तो मैं मुझको बोल रहा हूँ, तो उसको कहा विचार। और देखना मतलब चित्रण। तो सुनना, बोलना और देखना है वो एक ही वस्तु पे जब हो जाता है तब वो ध्यान में है, ऐसा हम कह सकते हैं, तब मेरा उसके ऊपर ध्यान बना है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो भैया मान लो कुछ प्रस्ताव दे रहे हैं, जैसे उन्होंने बोला कि शिक्षक है वो कर्मचारी, विषयगत पहचान,
या फिर वर्ग अनुसार बैच, तो उन्होंने एक वाक्य मान लो बोला कि शिक्षक मतलब कर्मचारी मानसिकता। तो ये मैं सुन रहा हूँ और साथ ही ये शब्दों का मेरे अंदर कुछ अर्थ है, उसके ऊपर मैं विचार कर रहा हूँ, यानी तुलन और विश्लेषण कर रहा हूँ। तो मैं सुन और बोल दोनों रहा और उसका विषय एक ही है। फिर उसके अनुरूप को चित्र भी मेरे सामने कर्मचारी के, तो ये जो शब्द के भी चित्रण है कर्मचारी से हो और उसका जो तुलन और विश्लेषण हो रहा है उसका भी कुछ चित्रण है, वो मेरे अंदर बन रहा है, तो वो देखना है। पर मेरा विषय है वो यही जो भैया बोल रहे हैं। पर मान लो भैया बोल रहे हैं, उसके साथ साथ ये क्रिया चल रही है, अब भैया आगे कुछ और बोल रहे हैं, मेरा जो आगे बोल रहे हैं वो विषय चेंज हुआ कि नहीं जीवन क्रिया के अंदर, तब वो देखना बोलना और सुनना है वो साथ साथ चल रहा है। और जीवन की स्थिति है कि ये इतना फास्ट कर पाता है, ये बहुत फास्ट होता है। जो सुनना बोलना देखना एक ही मोमेंट पे तीनों शुरू है, ये जीवन का पोटेंशियल है, इसी को कहा जीवन बल, जीवन शक्ति। ये आपने हो ही रहा है, आप देखिए। साथ में ये भी होता है कि भैया ने जैसे बता रहे हैं कुछ, तो और सभी कर्मचारी की बात हो रही है, तो कर्मचारी की मतलब जो जो मेरी पहले से मेरे पास उसकी जो नॉलेज है तो उस पर वो विचार फैल रहा है। भैया आगे भी बोल रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कभी कभी कि जो पहले बोला है ना उस पर ये भी विचार फैल रहा है और बाद में आगे क्या बोला वो पता ही नहीं। हाँ, ऐसा होता है। तो इसीलिए इसी को कहा कि पूर्ण रूप से पहले सुनना, श्रवण क्रिया। तो हम कई बार चीजों को जो हमने पहले से सुनी हुई है उसको विचार में ज्यादा समय तक फैला देते हैं, तो वो जो समय पीछे छूट जाता है उसमें जो कहने वाला है उसकी बातों को हम सुन नहीं पाते। फिर क्या आता है, जो नहीं सुना ना उतने के बारे में हम अपनी मान्यताओं को मतलब वहां पे भर देते और फिर वापस आए, फिर कुछ बोल रहे हैं, उतना हमने अर्थ निकाला, फिर छोड़ दिया, काफी सारी चीजें वो फैला दी। तो ऐसे ऐसे करके हम पूरा जो बोल रहे हैं उसको नहीं सुन पाते। ऐसा अक्सर अध्ययन अभ्यास क्रम में होता ही सबके साथ। इसीलिए श्रवण क्रिया है, उसका महत्व इस रूप में है कि हम जो भी वक्ता बोल रहा है या प्रबोधन हो रहा है या फिर टीचर बोल रहा है या सामने वाला संबंधी कुछ भी बोल रहा है, उसको हम प्रेजेंट में रहकर कितना सुन पाए। अगर हमने सुन लिया और वो चित्रण तक हमने ले लिया, यानी हमने वो याद रह जाता है, स्मरण में आ जाता है। फिर क्या है कि हमारी आवश्यकता अनुसार जब हम फ्री है, जैसे भैया ने कहा कि यहाँ से 5 बजे के उसके बाद हम मान लो ड्राइविंग कर रहे हैं, तो एक रूप से काफी सारी चीजें तो उसमें स्वतः हो रही है। या फिर मान लो हम खाना खा रहे हैं, या फिर मान लो हम नहा रहे हैं, हाथ पैर धो रहे हैं, तो काफी सारी चीजें तो इसमें है वो हम अब इतने हो गए और यांत्रिक रूप से चल रहे हैं। उस समय हम उन चीजों को फैला भी सकते हैं और अक्सर हम करते भी हैं, जिनको हमने इम्पोर्टेंट मान के रखा है उनको हम कभी फैलाते हैं। बिल्कुल। पर सुनने के समय अगर हम प्योरली सुन पाए तो ज्यादा अच्छा। जैसे हमने कोई भैया ने बात की, उसमें कुछ मिठाई की बात आ गई और हमने इम्पोर्टेंट मान कर रखी। अब मैं स्कूटर चला रहा हूँ तब भी वो उसको हम फैलाता हूँ, हाथ पे धो रहा हूँ तब भी फैलाता हूँ, जो भी। तो ये एग्जाम्पल है। पर ऐसी कई बातें हो जाती है उसमें, मान लो ऐसा शब्द आ गया पकौड़ी, अब ये इम्पोर्टेंट है तो मैं फैलाता रहता हूँ जब भी मुझे समय मिले। तो इसी को प्रवृत्ति कहा, क्योंकि वो वृत्ति में फैलाने का काम होता है, विश्लेषण विचार। तो मेरी प्रवृत्ति है सोना, मतलब सोना खरीदना या सोना कैसे मेरे पास आ जाए। और भैया ने कुछ बात की, एग्जाम्पल दिया, मैंने वो आईफोन का एग्जाम्पल दिया, तो वो फिर हम जब भी होते हैं तो फैलाते रहते हैं। तो इफेक्टिवली सुनने के लिए मैं कंक्लूड करता हूँ इसको, इफेक्टिवली सुनने के लिए सामने वाली व्यक्ति के जो भी शब्द है उसके ऊपर समय सीमा में सुनना बोलना देखना
शुरू होता रहे। तो जितना कहा उसको सुनना बोलना देखना कर लिया, फिर आगे फिर आगे फिर आगे। इससे क्या है, हमारा प्रेजेंट में है वो सुनना है वो पढ़ना, और ये इजीली इस स्किल को आप अर्जित कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं है। जब भी हमें मालूम हो जाता है कि ये मेरे काम की चीज है, तो हम इतना अटेंटिवली रहते हैं कि हम ज्यादा विचारों को फैलाते नहीं, तभी बाद में आराम से फैलाए, फिर क्वेश्चन भी होंगे। इसीलिए शिविर में दूसरे दिन कहते हैं कि कल बात हुई इसके ऊपर पे क्वेश्चन है तो बताइए। इतना बढ़िया और अच्छा है। एक वीडियो है इसके ऊपर, मैं ग्रुप में रख देता हूँ, सौंप भैया का, ध्यान के ऊपर, एकाग्रता के ऊपर, 3-4 मिनट। ये ठीक हो गया। तो मतलब बेसिकली हम यहाँ पर एक शिक्षाविद के रूप में तैयार हूं, वो कैसे होगा उस पे मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ। बस ये भैया का मतलब मुझे बहुत ही अगत्य का लगता है कि जैसे टीचर, जितने भी टीचर ग्रो हुए हैं वो अपने आप को किसी विषय के सीमा में नहीं बांधते, तभी ग्रो हुए। और एज ए ह्यूमन भी जितने भी ग्रो हुए, जिनकी उन्नति हम देख रहे हैं, वो किसी अपने सीमित दायरे में किसी ने नहीं देखा। जैसे सेवा के कार्य में मदर टेरेसा का नाम देते, तो उन्होंने अगर अपने पराये के रूप में देशवासियों को देखा हो तो उनका नाम उसने इतना बड़ा होते देख पा, वैसे ही हम देखना। हाँ ठीक है। और किसी ये बात मतलब मेरे को इतनी बात कहनी थी, है ना, कि हम जो है अपने आप को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो परिस्थिति अनुसार है, माने क्योंकि हम जिस युग में रह रहे हैं उस युग में संस्था का होना और उसमें के रजिस्टर होना और उसमें कोई सैलरी सिस्टम होना, वो एक परिस्थिति का वो है, परिस्थितिगत सिस्टम है, वो बाध्यता है ना। भाई जिस मानवीय शिक्षा की बात हम कर रहे हैं उस मानवीय शिक्षा में तो ऐसा नहीं होगा कि, है ना, मतलब आप वो जो एक रजिस्टर रखेगा, ये कुछ चीजें हैं, पंचिंग होगा, ठीक है, ये धीरे धीरे ये होना ही है। मतलब मैं तो उस कल्पना में हूँ कि भाई हम ये कम से कम अपने यहाँ बंद कर पाए, पर उसके लिए फिर क्या होगा, उसके लिए वो जब हम सब उस जगह पे पहुंच जाएंगे, उस मानसिकता में पहुंच जाएंगे, तो फिर ऐसा होगा ही नहीं कि आज पंचिंग मशीन नहीं है तो आज मैं 10 की जगह 8, 9, 12 बजे भी जा ही सकता हूँ। ठीक है, और पंचिंग मशीन लगा के, अगर आप शिक्षक नहीं है तो पंचिंग मशीन लगा के भी वो नहीं होता। सरकारी स्कूल में तो तमाम जुगाड़ करके देख लिया उन्होंने, वहाँ पंचिंग मशीन भी है, फिर उनको स्कूल के बाहर व्हाट्सएप पे अपनी फोटो खींच के भेजनी भी है। ठीक है, उसके बावजूद भी कुछ मतलब सब शिक्षक नहीं आते हो टाइम पे, तो है ना। जैसे आपने अखिलेश जी को कल देखा, अब आपको क्या लगता है वो शिक्षक हैं प्राइमरी या वो शिक्षाविद हैं? उनका जो दायरा है सोचने का और जिस तरह से वो कर पाते, कर वो 5वीं में ही रहे, लेकिन वो शिक्षाविद मतलब उन्होंने अपने आप को एक शिक्षक के रूप में देखा है। अगर केवल सरकारी कर्मचारी के रूप में देखते तो 1 साल उनको सैलरी नहीं मिला शुरू में, 1 साल, क्योंकि सरकार का एक तरीका होता है, तो वो कोई कागज उनका रह गया था, तो वो फिर उनके फौज के हेडक्वार्टर से आना था, तो ये फिर फौज के हेडक्वार्टर में गए और यहाँ वालों ने गुम कर दिया। फौज का काम तो बहुत सिस्टमेटिक होता है, तो साल भर तक, बाद में साल भर की मिल गई, लेकिन वो साल भर भी टाइम से ही गए, मतलब उनको 8 बजे पहुंचना है तो वो 8 बजे ही पहुंचे। ठीक है, और साल भर उस सैलरी को लेकर के उन्होंने केवल एक बार मुझे बताया, मतलब ऐसी चर्चा में आ गई, नहीं तो मेरे को याद नहीं है कि उन्होंने कभी इसको लेकर के मेरे सामने बोला होगा। मतलब इस हमारी चर्चा हुई तो दर्शन को लेकर के ही हुई होगी या शिक्षा को लेकर के ही हुई होगी। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि सरकार का देखो मेरे को साल भर से सैलरी नहीं मिल रहा है, ठीक है, जबकि उनके 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे और भी एक बात है, तो बेसिकली शिक्षाविद होना होगा। उस क्रम में बेसिकली वो न्याय धर्म सत्य की जो सूचना हमारे पास आई है उसको ठीक से बिठाना होगा। तो जब तक अपने को बच्चों से संबंध समझ में नहीं आता, मतलब वही स्वीकार नहीं होता,
वो वात्सल्य वाली की बात कि मैंने समझदार बनाना है तो मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं अपने बच्चे को समझदार बनाना चाहता हूँ, तो क्या मैं अपने बच्चे के बारे में इस समय नहीं सोच रहा हूँ जब मैं यहाँ कोठासना में हूँ या जब मैं कार में जा रहा हूँ? वो चलता ही है, क्योंकि मैंने संबंध स्वीकारा हुआ है, क्योंकि मैंने जिम्मेदारी स्वीकारी हुई। इस रूप में हमारा सोचने का काम अगर लगातार चलता है तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कभी भी वो समय आराम से 1-8 घंटे की बात होती है। इस रूप में बोल, है ना, वो तो फिर आ ही जाएगा। मेरा सोचा हुआ तो कागज में मैं उतार ही लूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, पर मुझे लगता है कि कम से कम एक शिक्षक के रूप में हम ये नहीं बोल सकते कि कल संडे था इसलिए मैंने सोचा नहीं, मतलब ये चांस ही नहीं बनता। ठीक है, ठीक। तो क्या होगा भाई, जैसे मान लीजिए आप सामान्य सी बात है, जैसे आप पुस्तकालय को भी देखते हैं, तो अगर आप केवल अपने को कर्मचारी के रूप में देखते हैं तो आप जब स्कूल में आएंगे तभी, जब तक आप लाइब्रेरी में नहीं घुसेंगे तब तक आपको ध्यान ही नहीं आएगा कि कौन कौन सी किताबें खरीदी जा सकती। तो पता लग रहा आप सारा अहमदाबाद घूम के आए किसी और दिन अपने घर वालों के साथ, आप 4 दुकानों के आगे से गुजर के किताबों, लेकिन आपको ध्यान ही नहीं आएगा क्योंकि वो केवल स्कूल का काम है। लेकिन अगर आप, क्योंकि आप उस शिक्षक भाव के साथ हो तो घर का सामान भी खरीद ही लेंगे, लेकिन जो है वो, है ना। मैं अपना एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूँ कि जैसे जब मैं बिहार जाता था या मैं और जगह, जैसे यहाँ तो मैं अभी बच्चों से अब कनेक्ट करना शुरू करूंगा और बाकी जगह तो करता ही हूँ, और वहाँ भी रेगुलर जाता था। तो जैसे मैं, और बहुत से बच्चे उसमें से फेसबुक में थे, तो मैं फेसबुक में जो भी मतलब जो भी मैं चित्र डालता था, मेरे दिमाग में ही चलता था कि इस चित्र को देख करके वो क्या सवाल मुझसे पूछने वाले हैं और मैं इससे फिर क्या चर्चा छेड़ने वाला हूँ, इसको ध्यान में रखते हुए मेरा वो चित्र डलता था। और अक्सर ऐसा होता था, मेरे जाने से पहले बच्चे तैयार रह गए थे, अरे आप कहाँ गए थे? वहां गया था। तो वहां क्यों गए थे? वहां आपने ये वाली फोटो आपने क्यों डाली, वो वाली फोटो क्यों डाली? तो वो जो 2400 घंटे एज ए शिक्षक के रूप में, है ना, कर्मचारी तो ठीक है वो 9 से 5 में हुई, वो तो मेरा बहुत, वो मेरी पहचान नहीं है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, है ना। मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ, इतनी बात, ठीक है। तो मूलतः मैं विचार, मानव एक्चुअल में उसकी पहचान तो विचार ही है ना, तो ठीक है। चलिए, और कुछ? मुझे लगता है सामने कुछ कोई व्यक्ति जो भैया ने कहा उस तरीके से जी रहा, सोच विचार उनका इस तरीके से चलता है, तो जब भी मौका हो तो थोड़ा एक सार्थक शेयरिंग भी करना चाहिए। बिल्कुल, तो प्रेरणा सबको और पता चलता है। मेरी एक मित्र हैं जो मेरठ के स्कूल में वो हैं, प्रिंसिपल हैं वो, हम कभी किसी स्कूल में साथ में थे, तो उसका लगभग हफ्ते में 1-2 बार फोन आ जाते हैं कि स्कूल में ये चल रहा है, वो चल रहा है, शेयरिंग करती, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। और मेरठ जो है वो बहुत खतरनाक जगह है शिक्षा की दृष्टि से, समाज बहुत अलग ढंग से देखता है ना। यूपी बिहार की धरती थोड़ा कठोर है, मतलब प्राकृतिक धरती बहुत उपजाऊ है पर मानसिक धरती बहुत कठोर है। हाँ, वहाँ तो क्या है, देखो हिंदुस्तान में 4 भगवान हुए हैं, 2 बिहार में और 2 यूपी में, हुए कि नहीं हुए? ठीक है, तो वो भगवान के अलावा किसी की सुनते ही नहीं है। ठीक, वहाँ समझाने के लिए भगवान की जरूरत पड़ती है। हाँ, धीरे धीरे होगी। तो वो काफी कठिन समाज में है जहाँ, लेकिन हर हफ्ते उनका फोन आता है और चर्चा करते हैं और कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते हैं, उनका चलता ही रहता है। बाकी दिन भर में जो है बच्चे भी पाल रही हैं, अपना गाड़ी चला के स्कूल जाती हैं, पूरे स्कूल की पूरी व्यवस्था जो भी प्रिंसिपल के रूप में व्यवस्था है वो सब देखती हैं। पर मैं ये देखता हूँ कि उनका विचार चलता रहता है कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, फिर लंच के लिए चलते हैं, है ना। लंच के बाद फिर हम दूसरी प्रक्रिया शुरू करते हैं।